this is my 7th lecture, or in fact 8th lecture on the same topic that I've been doing across India now. I'm sure that we are going to have a very good deliberation. And how we intend to take the session is, I think first 1 hour 45 minutes will cover the entire presentation, wherein the ITR forms, the Finance Act 19, and the latest income tax circulars will be covered. And the last 15 minutes we can have a for question answer session. Is that fine, Ankit ji and Amit ji? I think that yes, sir. Okay. No issues. Yeah. Can do that. So I will quickly share my presentation first of all. Yeah. So I think Hindi and English would be fine, na? Mix of both of them. Yeah. Language preference. Mixed language ही comfortable रहेगी, sir. Mix ही ना बस हाँ, Yes, absolutely, sir. that's fine. So I think before I get on to the presentation, I think बहुत लोग अभी join कर रहे हैं. So let us start with a small story. I think अभी हम सब, I think we are in office right now. हम लोग पूरे दिन से थक गए होंगे. I think let us refresh ourselves with a small story. It's again linked to the topic. So once upon a time there was, there was a person who wanted to learn gun shooting. हमने देखा गन शूटिंग उसको सीखना था, एंड उसने एक एक्सपर्ट को अप्रोच किया. ही टोल्ड दैट प्लीज टीच मी गन शूटिंग. तो एक्सपर्ट ने बोला कि यार आई विल गेट यू द लाइसेंस एंड द राइफल, एंड नेक्स्ट वीक हम स्टार्ट कर सकते हैं सीखने का. सो द पर्सन वाज वेरी एक्साइटेड. ही टोल्ड ओके यू कम टू माय हाउस, आई हैव अ बिग बैकयार्ड. मेरे घर के पीछे बहुत बड़ी जगह है, वहां पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. सो द एक्सपर्ट सेड ओके आई एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, आई विल कम आफ्टर अ वीक, और तब हम प्रैक्टिस करेंगे. So after a week, when the expert went to the house, he saw that on the backyard there were different marks on the backyard. तो उसको लगा ये मार्क कैसा है. उसने पूछा कि भाई ये किसने किया ये. तो द पर्सन हु इज येट टू लर्न, उसने बोला सर मैंने शूटिंग किया ये. तो ही वाज वेरी सरप्राइज कि बोला यार ये हर मार्क के बीच में आपने देखा एक है ना सर्कल था, उसमें एग्जैक्टली बुलजाई पे वो मार्क किया हुआ था. तो एक्सपर्ट एकदम डर गया. वो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू हिट इन बुलजाई, यू येट टू लर्न. तो वो बोलता है नहीं सर मैंने ही किया है. तो बोलता है ठीक है तुमने पास जाके शूट किया, हाउ डिड यू शूट. देन द पर्सन टोल्ड कि नो सर, विद द सेम डिस्टेंस विद व्हिच यू डू इट इन द टूर्नामेंट, वो सेम डिस्टेंस से मैंने शूट किया. सो द एक्सपर्ट वाज फ्लैबरगास्टेड, ही वाज शॉक्ड, सरप्राइज्ड, ही वाज कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मैं 15 इयर्स आई हैव बीन डूइंग दिस और अभी तक मुझे परफेक्शन नहीं आया, ये आप कैसे कर सकते हो. सो ही जस्ट टोल्ड सर यू ड्रॉ द सर्कल एंड शूट, आई शूट एंड देन ड्रॉ द सर्कल. So friends, this is what is happening even with our clients. वो कर देते हैं, फिर हमको बोलते हैं उसके पीछे सर्कल बना दो, उसके पीछे ये कर दो. So but in real life it doesn't work that way. Circles are already drawn. आप देखोगे तो CBDT के जो सर्कुलर्स आ रहे हैं, जो हमारे ITRs के जो नोट्स आ रहे हैं, even the forms are there. They are no so elongated now. आप देखोगे तो it's like a scrutiny forms. इतने डिटेल बढ़ा दी है कि हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है कि हम शूट करके फिर हम पहले ड्रॉ करें फिर शूट करें. We have to go by the rules. We have to first draw the circle and then only shoot. So with this, I think let me start off with the presentation. So COVID-19, I think Ratlam maybe, I think I'm sure कि बहुत effect हुआ होगा. Ahmedabad also has been very affected by this. Now we all have started our offices. New normal जो बोलते हैं वो भी आ चुका है. तो ये सब हमारा सिनेरियो था. I think यहाँ पे भी 2 महीने लॉकडाउन था, तो we all were pretty relaxed at home. We all were sitting at home and relaxing. Yes, updating ourselves also. But this is what is happening now after the offices resume. I think all of us will agree कि clients को restart करने के लिए CA का बहुत बड़ा role है. And GST deadlines, TDS deadlines, whatever you say, I think a lot of things, lot of pressures will come to us. The biggest pressure also will be for articles. I think you all will agree. First year and third year articles have been doing the same stuff with a lesser staff. So what I'm going to do now, before I go on to the topic, let us cover the last 2 or 3 months के वहाँ पे कैसे developments हुए हैं, which has led up to this, led to the new ITRs. So first and foremost, I think I'll say on 3rd of January, पहली बार ऐसा हुआ कि assessment year खत्म हुआ, उसके पहले ITR forms issue कर दिए गए. आज तक I think कभी ऐसा नहीं हुआ है. So on 3rd of January, ITR 1 and ITR 4 were notified. ये 2 ITR notify कर दिया, and it was a euphoria. हम लोग बहुत खुश थे कि यार इतना जल्दी ITR दे दिए हैं, तो we are expected कि बाकी ITR भी जल्दी आ जाएंगे. पर उसके बाद में in February and March there was Finance Bill 2020, and post that we became a Finance Act, and Namaste Trump. I think it was a euphoria, बहुत अच्छी सा माहौल था. And then you can see in the month of March, and then came the month of March wherein we all know that something like this was happening in China. पहले हो रहा था, and then eventually it came to affect us also. उसके पहले हमको खाली कोरोना footwear and the corona beer ये चीज हमको पता थी, but now we are very much aware of the corona COVID-19 and how it has affected all of us.
After that, 2 months of lockdown. I think that was a big change for all of us, because in that also government ने बहुत सारे actions लिए. There was a lot of press releases, ordinance was issued, circular notifications, RBI measures were there. तो बहुत कुछ वो 2-3 महीने के अंदर हुआ, जिसका impact अभी हम study करेंगे. After that, new normal. So as it is said, new normal, actually जो first day of office था, मेरी तो ऐसी हालत थी, I think हम सबकी ऐसी हालत हुई होगी, when we always struggling to see what is going to come next, because हम लोग ने 2-3 महीने से get out of touch. But now, friends, it's time to get back to routine, get back to this, because I think deadlines and due dates are already starting up. So with this, I think this was the background of which I wanted to discuss these topics. First and foremost, I'm going to cover the Taxation and Ordinance, Other Laws Ordinance 2020. तो आपको ध्यान होगा 31 मार्च को एक ऑर्डिनेंस आया था. वो ऑर्डिनेंस के बाद में 24 जून को एक और नोटिफिकेशन आया. हम वो दो को साथ में कवर करेंगे वेरी ब्रीफ में. देन विल टेक द आत्मनिर्भर पैकेज अगेन. इसमें भी खाली एक स्लाइड के ऊपर विल डिस्कस के डायरेक्ट टैक्स इंपैक्ट क्या था. उसके बाद तो हमारा मेन टॉपिक है जो आईटीआर फॉर्म्स के चेंजेस है, अलोंग विद दैट जो हमारे मेजर अमेंडमेंट्स है. आई थिंक फाइनेंस एक्ट 2020 सबने पढ़ा होगा बिकॉज वो रिसेंटली आया है, बट लास्ट ईयर का फाइनेंस एक्ट जो हमको इस साल एप्लीकेबल है, वी हैव टू रिफ्रेश दैट आल्सो बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ. एंड देन लास्ट विल कंसीडर इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स, बिकॉज सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस बहुत सारे रिसेंटली आए हैं. वी विल कवर फॉर एग्जांपल नया फॉर्म 26AS जो आया है, 10DA फॉर्म जो आया है. आई थिंक इनफैक्ट 13 जुलाई को भी एक सर्कुलर आया जहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया पुराने रिटर्न्स को वापस ई वेरीफाई कराने का. So all these things in nutshell we'll cover in the next 1.5 hour. So before that, a few important questions. I think we all are Zoom call पे. I think we all can discuss also verbally, but there are a few questions. मैं आपको pose करता हूँ. You think, and at the end we'll answer also. So can joint owners of property, can they file ITR 1? That is the question. कि भी last year करते थे कि नहीं, अभी कर सकते हैं कि नहीं? That is the question that you would think about. Second, 80EEB के जो section है, क्या salaried persons can take a benefit of this section? Now, a lot of you will be thinking ये section है क्या? But this section again came up with Finance Act 19 only. We will discuss that in detail. Again, a very important change. Third, TDS rates हमारे कम हो गए हैं. 5 आपको सबको पता है 25% से कम हो गए. तो इफेक्टिव कब से है? Secondly, अगर पैन नंबर नहीं है तो क्या मुझे 20% काटना है कि 15% काटना है? Again, a question to you can all think about. Can a non-resident professional claim 44 ADA? और I think second question is more relevant for all of us. हमारे में से कितने CAs ऐसे होंगे जो 44 ADA में ऑडिट करते हैं, 44 ADA के अंदर फॉल होते हैं. So in that, can you mention that I have not maintained books of accounts? ICAI का कोड ऑफ एथिक्स कहीं बीच में आता है. That is again to be thought of. And last, again a new section 115 BAB. इसमें can there are a lot of things कि manufacture होता है कि नहीं, वो हम डिस्कस करेंगे. So with this, these are all this is a background of what we are going to see now. And starting off with quickly with the ordinance. So हम सबको पता है कि why an ordinance is issued. So when the houses of parliament are not in session and the president believes that there are circumstances which exist, it render it necessary for him to take immediate action, he may promulgate an ordinance. जो कोविड-19 था उस टाइम पे ये सिचुएशन हुआ था एंड प्रेसिडेंट ने इसलिए एक ऑर्डिनेंस लेके आया. वो ऑर्डिनेंस के अंदर बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए गए थे एंड जो रिलैक्सेशंस है वो मेनली 3 फ्रंट पे थे. रिलैक्सेशन इन ड्यू डेट्स, रिलैक्सेशन फॉर अवेलिंग डिडक्शंस एंड रिलैक्सेशन अदर रिलैक्सेशंस. So this entire presentation I'm going to share with the organizers. आप बाद में आराम से देख सकते हैं. I'm going to cover the main parts only as of now. तो इतने सारे एक्ट्स के अंदर उन्होंने टाइमलाइन बढ़ा दी थी, ये एक्सटेंशन दिया था. तो दिस इज अ समरी ऑफ इट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इफ यू सी, मेरा आईटीआर जो 18-19 फाइनेंशियल ईयर का था, जिसका 31 मार्च था, उसका डेट बढ़ा के 30 जून कर दिया है. मेरा 80C से 80G जो रिडक्शन से जो मेरे फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 31 मार्च थे, वो उन्होंने 30 जून कर दिया है. वो अभी एक्सटेंड हो गया 31 जुलाई हो गया. सो वी विल गो एट स्टेप अहेड, आगे हम जाके देखेंगे. तो ये सब जो अमेंडमेंट लेके आए थे, इवन कैपिटल गेन के डिडक्शन, सब 30 जून तक उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था. सबसे इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ टीडीएस एडवांस टैक्स, ये जो है उसका भी हमने देखा था फॉर द मंथ्स ऑफ मार्च अप्रैल मई, मतलब 30 मार्च से लेके 29 जून के बीच में जो फॉल होते हैं, खाली उनका डेडलाइन उन्होंने 30 जून किया था. बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि जुलाई में मैंने भरा हो तो क्या हुआ, या तो उस टाइम पे वो एप्लीकेबल नहीं है, इट वोंट बी अलाउड. और ये चीज का एक्सटेंशन नहीं हुआ है, जो अपने 31 जुलाई में हुआ उसमें टीडीएस की डेट नहीं बढ़ाई है. विवाद से विश्वास पहले 30 जून किया, अभी 31 दिसंबर कर दिया है. नाउ ये सारे फॉर्म्स है, 15G 15H का है या 61A है टीडीएस, ये सब की डेट उन्होंने 30 जून कर दी थी पहले. नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये तो 30 जून के बाद में था, इसके बाद में नया नोटिफिकेशन आया 24 जून वाला, जहां पे उन्होंने उसको 1 महीने और एक्सटेंड कर दिया. बट ऑर्डिनेंस के अंदर एक दो चीज और रेलेवेंट थी दैट वी आर गोइंग टू कवर नाउ. वन इज दी पीएम केयर फंड. हमारे भी बहुत सारे क्लाइंट्स ने इन्वेस्ट किया है, मतलब डिडक्शन के लिए अमाउंट इन्वेस्ट किया. इसमें 100% डिडक्शन मिलता है पीएम केयर फंड का. एंड सिमिलरली आपको 30 जून तक का टाइम दिया गया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉर फाइनेंशियल 1920.
और पीएम केयर एंड सीएम फंड, जो भी कंपनी में सीएसआर एप्लीकेबल होता है, वहां पे ये बहुत ध्यान की बात है कि पीएम केयर फंड इज एलिजिबल फॉर द सीएसआर, बट सीएम जो चीफ मिनिस्टर केयर फंड है वो सीएसआर के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये दोनों का डिस्टिंग्विश में था इसके अंदर। नाउ कमिंग स्ट्रेट अवे टू दी नोटिफिकेशन जो 24 जून को आया, हमने जो डिस्कस किया कि सब डेट्स उन्होंने 30 जून तक एक्सटेंड कर दी। अब उसके बाद उन्होंने नोटिफिकेशन 24 जून को लेके आए, जब उन्होंने बोला कि जो टाइम बैरिंग पीरियड था वो भी रिवाइज कर दिया कि इफ एनी टाइम बैरिंग फॉल्स ड्यूरिंग द पीरियड 20th मार्च टू 31st ऑफ दिसंबर, उसका डेट उन्होंने 31st मार्च कर दिया है। तो इनकम टैक्स की कोई भी डेडलाइन आपके अगर ये बीच में फॉल होती है फ्रॉम द इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि टाइम बैरिंग हो रहा है, वो एक्सटेंड करके उन्होंने 31st मार्च कर दिया। हमारे जो कैपिटल गेन के जो इन्वेस्टमेंट से 54 के या हमको जो भी एग्जम्पशन डिडक्शंस लेने थे, वो जो हमारे पहले 30 जून था वो हम 30 सितंबर तक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 1920 का मुझे कोई भी बेनिफिट लेना है 54 का 54F का, उसका मैं डिडक्शन 30 सितंबर तक इन्वेस्ट करके ले सकता हूँ। न्यू डेट्स आई थिंक फॉर असेसमेंट इन 1920 हमारा जो 31 जुलाई था, जो लास्ट ईयर का रिटर्न था 1819 का जो 30 जून किया था, वो भी 31 जुलाई कर दिया है। और हमारा इस साल का जो असेसमेंट ईयर 2020 जो भी करने वाले हैं फाइल, उसका ड्यू डेट 30 नवंबर कर दिया है। डिडक्शन जो चैप्टर 6A के डिडक्शन से वो भी उन्होंने 31 जुलाई कर दिए हैं। तो फॉर एग्जांपल किसी का पीपीएफ भरना रह गया है, किसी का 80C का कोई और डिडक्शन लेना रह गया है, LIC का, तो दे कैन स्टिल मेक एन इन्वेस्टमेंट टिल 31st ऑफ जुलाई फॉर द लास्ट ईयर एंड दे कैन टेक अ बेनिफिट। नाउ वो उसको डिस्क्लोज कैसे करना है, दैट यू विल सी इन द ITR रिटर्न्स। नाउ कमिंग टू द TDS रिटर्न्स की डेट भी 31 जुलाई कर दी है। फॉर गवर्नमेंट इट इज 15 जुलाई, फॉर अस इट इज 31st ऑफ जुलाई। एंड नाउ विवाद से विश्वास 31 दिसंबर कर दिया था। एंड लॉट ऑफ टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर कर दी थी। दिस आर ऑल द ड्यू डेट्स। TDS सर्टिफिकेट्स की डेट फॉर सैलराइड एक्सटेंडेड टू 15 अगस्त। नॉन सैलराइड जो है उसको ऑटोमेटिकली लिंक टू TDS रिटर्न ही होता है, तो 15 दिन मिला के वो 15 अगस्त ही होता है। जो सैलराइड वाले हैं उनकी भी एक्सटेंड करके 15 अगस्त कर दी थी। तो ये 24 जून को जो भी अमेंडमेंट आए, इट इज इन फर्दरेंस टू द ऑर्डिनेंस ऑन 31st ऑफ मार्च। तो ये एक समरी बनाई है। आई थिंक आपको मैं प्रेजेंटेशन दूंगा, यू कैन स्टडी द समरी कि ओरिजिनल ड्यू डेट्स क्या थी, ऑर्डिनेंस में क्या आया, और उसके बाद में नोटिफिकेशन में क्या एक्सटेंशन किया है। So this I have made a comparison. You can see it afterwards. So जैसे TDS का भी मैंने लिखा था कि भाई क्या डेडलाइन थी, अभी 31 जुलाई हो गई है। As I said, I think इसमें मेजर इम्पैक्ट इशुएंस ऑफ नोटिस का है कि मेरा कोई डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस है जो मेरा 20th मार्च से 29 जून के बीच में था, वो मेरा बढ़ा के 20th मार्च से 30 दिसंबर तक कर दिया है। वो आपको 31 मार्च तक वो आपको इशू नोटिस इशू कर सकते हैं। So this is more or less a change in the ordinance and the notification. Now coming to the आत्मनिर्भर पैकेज, आई थिंक आत्मनिर्भर पैकेज भी हम क्लियरली फटाफट डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी जैसे बताया कि ITR फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 जो हम फाइल करने वाले हैं उसकी ड्यू डेट बढ़ा के 30 नवंबर कर दी है। आई थिंक फाइनेंस एक्ट 2020 में जिसने भी पढ़ा है, आई थिंक देयर इज अ चेंज नाउ। ITR की ड्यू डेट अभी 31 अक्टूबर हो गई है और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट 30 सितंबर ही है। तो इस साल इन्होंने एक महीना एक्सटेंड कर दिया है। टैक्स ऑडिट 30 सितंबर का 31 अक्टूबर कर दिया है। ITR जो ओरिजिनल 31 अक्टूबर था वो भी 30 नवंबर कर दिया है। टैक्स ऑडिट को मैंने बताया एक्सटेंड कर दिया। TDS रेट्स नाउ आई थिंक वी ऑल शुड नो इट्स अ प्रेस रिलीज। अभी इसमें कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आया, इट्स ओनली अ प्रेस रिलीज। के प्रेस रिलीज के अंदर लिखा है कि 25% आपका TDS रिड्यूस हो जाएगा, TCS भी, इन केस योर पेमेंट और योर क्रेडिट फॉल्स इन द पीरियड 14th मई टू 31st ऑफ मार्च। तो आपका TDS उस हिसाब से लायबिलिटी होगी। और उसमें ये भी लिखा है कि अगर पैन नंबर नहीं है तो आपका TDS 20% से कटेगा, 15% से नहीं कटेगा, 20% से ही कटेगा। टाइम बारिंग का वी ऑलरेडी डिस्कस, विवाद से विश्वास वी डिस्कस। Change in definition of MSME. Now a very important thing, as a consultant we should all be aware कि 1 जुलाई से MSME की definition change हो गई है। Now MSME की definition जो new definition है, इसमें 50 करोड़ तक का investment in plant and machinery and turnover of 200-250 करोड़ का definition है। I think we have to advise the clients accordingly कि MSME का registration जो नया करवाना है वो भी करवा लें, and इसका benefit जितने भी मिलते हैं MSME के, we can tell them and guide them to take the benefit of that. एंड इनकम टैक्स रिफंड उन्होंने इशू करने का बोला था, जब उन्होंने बहुत सारे रिफंड इशू कर दिए। तो दिस वाज बेसिकली आत्मनिर्भर पैकेज। पर हमारे लिए एज अ प्रोफेशनल, हमारे लिए कितना भी अपडेट एक्सटेंड कर दो, आई थिंक वी हैव टू सिट इन द ऑफिस टिल द लास्ट डे, बिकॉज हमारे सारे क्लाइंट्स लास्ट डे पे भी काफी आते हैं। तो पोस्ट दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ITR फॉर्म्स। तो ITR फॉर्म्स हम कैसे डिस्कस करेंगे, जो ITR 1 और ITR 4 है, ये दो जनवरी में भी आए थे, तो हम लोग उनको कैसे करेंगे, लास्ट ईयर विज़ जनवरी विज़ मई, 3 कंपैरिजन होंगे, और बाकी सारे ITRs को हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर एंड करंट ईयर। उस तरह से हम कंपैरिजन स्क्रीनशॉट का शेयर करेंगे। So it is rightly said that income tax returns are the most imaginative fiction being written today. I think ये बहुत सही बोला है कि today it takes more brains and efforts to make out the income tax form than it does to make the income.
तो ये बहुत ही सही बोला है कि भी आप नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट, मोर और लेस स्क्रूटनी फॉर्म्स दैट वी हैव टू सबमिट नाउ फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स फॉर्म्स। तो एज आई सेड दिस ईयर आईटीआर फॉर्म्स नए जो नोटिफाई किए थे फर्स्ट टाइम, आई थिंक इट इज द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव नोटिफाइड बिफोर द असेसमेंट ईयर एंड्स, एंड वी आर वेरी हैप्पी कि ऑल फॉर्म्स आ जाएंगे, पर वो आए नहीं। तो आई थिंक लेट अस गो बैक टू द बजट स्पीच। बजट 2019 की स्पीच में कुछ कुछ बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स दैट वी विल डिस्कस फर्स्ट। उन्होंने बोला था कि भी आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो आपका 78% ग्रो हुआ है इन द लास्ट 4 or 5 years, that is from 6 lakh crore in 13-14 to 11.37 lakh crore in 18-19. So you can see phenomenal increase in the direct tax collection in the last 4 or 5 years. Even the number of taxpayers have increased by 48%. तो आपका 5 करोड़ के बजाय अभी 8.5 करोड़ टैक्स पेयर्स आपके हैं। एंड फाइनेंस मिनिस्टर हैड वेरी राइटली मेंशन अबाउट द पैन एंड आधार इंटरचेंजेबिलिटी। तो हम अभी आईटीआर फॉर्म देखेंगे, बहुत सारे फॉर्म्स में पैन एंड आधार को इंटरचेंजेबल कर दिया है, एंड वी कैन एक्चुअली सी इट इन द इन द आईटीआर फॉर्म्स इटसेल्फ। नाउ कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। सो दिस ईयर इन द लास्ट ईयर्स बजट the finance minister had proposed a seventh proviso to 139(1), जहां पे उन्होंने बोला कि अगर आप ये 3 कंडीशन में फॉल होते हो तो irrespective of your actual due date, whether you're required to file return or not, you have to compulsorily file the ITR. So for example, if you have deposited an amount aggregate exceeding 1 crore or more one or more current accounts maintained with the bank, अगर आपने बैंक अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का आपने अगर जमा करवाया है, या आपने कोई फॉरेन ट्रैवल के लिए इफ यू हैव मेड मोर देन 2 lakhs ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर योरसेल्फ और योर फैमिली मेंबर फॉर अ फॉरेन ट्रैवल, और थर्ड इज अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख से ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, अमाउंट एक्सपेंड किया है, अगर आपने ये 3 कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल करते हैं, देन यू हैव टू कंपल्सरीली फाइल योर आईटीआर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। आपका इनकम अगर सपोज आपका बेसिक एग्जम्पशन से भी कम है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। तो ये 3 कंडीशन में आई विल आई स्ट्रेस ऑन द फॉरेन ट्रैवल। हमारे फॉरेन ट्रैवल के लिए 2 नोटिफिकेशंस इनकम टैक्स के हैं व्हिच आई वुड लाइक टू लिंक हियर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज नोटिफिकेशन नंबर 148 2001 में आया था, जहां बोला गया है कि 139 के लिए ये जो फॉलोइंग 6 कंट्रीज है इनके ट्रैवल को फॉरेन ट्रैवल नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल आप अगर मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान या भूटान इन जगह पे जाएंगे तो उसको फॉरेन ट्रैवल नहीं माना जाएगा। एंड सेकंड इज 147 नंबर के, जहां बोला गया कि आपका सपोज कोई फॉरेन फॉलोइंग फॉर एग्जांपल ट्रैवल टू सऊदी अरेबिया ऑन हज पिलग्रिमेज गए हैं, और यू आर गोइंग टू चाइना फॉर अ कैलाश मानसरोवर, एमईएस जो ऑर्गेनाइज करता है, अगर आप इसमें गए हैं तो उसको भी फॉरेन ट्रैवल नहीं माना जाएगा। तो ये 2 नोटिफिकेशंस के लिंक थे। इसके बाद बजट में बोला था प्री फिलिंग ऑफ आईटीआर। उन्होंने बहुत अच्छा दिया था कि हम हमारे आपसे आईटीआर प्री फिल होंगे, फॉर एग्जांपल सैलरी है या कैपिटल गेन है, बट आई एम नॉट श्योर कि दिस ईयर हाउ दे विल डू इट, बिकॉज़ दिस ईयर आई थिंक अभी रिटर्न फाइल होने सब बाकी है, तो मे बी दिस कांसेप्ट विल कम इन फॉर नेक्स्ट ईयर। फेसलेस ई असेसमेंट, आई थिंक अगेन अ वेरी वैलिड पॉइंट मेड इन बजट। फेसलेस ई असेसमेंट अभी इंप्लीमेंट हो चुका है, आई थिंक हम सबको नोटिस भी आ गई है कि नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग इट। अभी ये टीचिंग प्रॉब्लम्स बहुत सारे आने वाले हैं, बट दिस वी हैव टू लिव विद इट बिकॉज़ नाउ ई असेसमेंट इज फेसलेस ई असेसमेंट इज अ रियलिटी नाउ। सो अगेन अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप ऑफ द डिपार्टमेंट। इंटरचेंजेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं, और इन्होंने कोटिंग ऑफ पान को आधार को मैंडेटरी बहुत जगह कर दिया था। सो विद दिस आई थिंक स्टैंडर्ड डिडक्शन में माइनर चेंजेस, 40,000 का 50,000 हो गया लिमिट स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर। नाउ फॉर दी they have notional rent, I think हमारा ये सबको पता है कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर one self occupied house property is considered as one house property can be considered as self occupied। अब उन्होंने बोला कि नहीं, आप कोई भी 2 हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते हो। सेकंड, थ्रेशोल्ड ऑन टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन बैंक और पोस्ट ऑफिस वाज 10,000 था, वो 40,000 हो गया है। Now coming to capital gain, I think very important amendment in section 54, जहां बोला कि अगर आप 54 के अंदर पहले था कि एक रेसिडेंशियल हाउस सेल करो, एक ही ले सकते हो। अभी बोला कि अगर आप एक रेसिडेंशियल हाउस सेल किया है एंड यू कैन परचेज इवन 2 रेसिडेंशियल हाउसेज provided the capital gain is up to 2 crores. So again a very welcome change that had come in Finance Act 19। 80 IBA affordable housing, I think अहमदाबाद में तो बहुत सारी स्कीम्स है जहाँ पे इसका बेनिफिट ले रहे हैं, तो उसको भी 2019 का एक्सटेंड करके 2020 तक बेनिफिट दिया था, मार्च अप्रूवल के लिए मार्च 20 तक कर दिया था। एंड इवन फॉर द रियल एस्टेट, आई थिंक वी ऑल नो दिस इज नोशनल रेंट, जो 23(5) में था कि आपका भी 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड उतना आपको अलाउड था, तो वो 1 ईयर का 2 इयर्स कर दिया है नोशनल रेंट के लिए। देयर वाज अ माइनर चेंज, मेजर चेंज इन दिस। सो विद दिस आई थिंक लेट अस गो विद द आईटीआर फॉर्म्स नाउ। तो ये इनकम टैक्स के एज ऑफ नाउ आईटीआर 1, 2 एंड 4 3 आईटीआर ई फाइलिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी आईटीआर नोटिफाई कर दिए पीडीएफ में, पर ई फाइलिंग के लिए फिलहाल 3 ही अवेलेबल है। अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल ईयर 1920 ये मैं खाली अप्रैल और मई। मेरी वॉइस जाएगी। हेलो, आप क्या बोल रहे थे? क्या है इसमें मतलब ये हेलो।
शुड आई कंटिन्यू? यस सर, वो देयर वाज सम इशू, ओके मैंने उनको म्यूट कर दिया है। ओके ओके। सो ये जो आप बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर अप्रैल मई के अंदर 18 लाख रिटर्न फाइल हुए, और 2021 के अंदर जो भी लॉकडाउन था पूरे इंडिया में, फिर भी 3.5 लाख रिटर्न फाइल हुए। सो आई थिंक वी प्रोफेशनल, आई डोंट नो, वी आर वर्किंग इवन इन लॉकडाउन, बट रिटर्न फाइल तो हुए इस टाइम पे भी। एंड उसके बाद में आप देखोगे डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 11.5 लाख जो मैं बता रहा था, 11.5 लाख करोड़ का जो कलेक्शन है वो ग्रेजुअली कैसे इंक्रीज हुआ है। नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स प्लस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है विच इज अराउंड 55% ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। So with this, go to the ITR forms. I think I'll share the entire this table also. उसके अंदर आपको सब डिटेल मिल जाएगा. But more or less, I think we have to be very sure कि last year जो changes आए थे, for example, अगर कोई person director है company में, he cannot file ITR 1. For example, a person who has invested in shares of an unlisted company, that person cannot file ITR 1. तो अभी भी वो conditions है. उसके अलावा अगर आपका एक हाउस प्रॉपर्टी है तो ये आप ITR 1 फाइल कर सकते हो. All conditions are the same. So this sheet we will share. आप इसमें देख सकते हैं कौन सी किसको applicable है. So now quickly going to the ITR 1, which is सहज. Now ITR कितने सहज है सरल है we don't know, but we will not discuss it about it now. So ITR 1 कौन फाइल कर सकता है? जिनकी इनकम फ्रॉम सैलरी है, पेंशन है, जिनका एक हाउस प्रॉपर्टी है और कोई लॉस कैरी फॉर प्रीवियस ईयर का नहीं है, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है एक्सेप्ट लॉटरी एंड विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस है, टोटल इनकम इज लेस देन 50 lakhs, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकम लेस देन 5,000 एंड नो इनकम फ्रॉम पीजीबीबी. पीजीबीबी आपका सीधा ITR 3 के अंदर आता है. नो इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया. ये सब कंडीशन थी. लास्ट ईयर उन्होंने चेंजेस किए थे. फॉर एग्जांपल, क्या कोई डायरेक्टर है कंपनी में, ही कैन नॉट फाइल ITR 1. बहुत लोगों ने फाइल किया था, कुछ लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस भी आई है. पर्सन वाज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, वो ही कैन नॉट फाइल ITR 1. एंड आपका ऑब्वियसली नॉन रेसिडेंट या तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, इवन दोस पीपल कैन नॉट फाइल ITR 1. तो ये कंडीशंस लास्ट ईयर थे, जो सेम कंडीशंस स्टिल रिमेन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, कमिंग टू द मेजर हाइलाइट्स. तो हम अभी क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया कि हम लास्ट ईयर को कंपेयर करेंगे, एंड ITR 1 एंड ITR 4 के अंदर हम लास्ट ईयर जनवरी एंड मई 3 कंपैरिजंस करेंगे. सो यू कैन ड्रॉ पैरेलल के भी कैसे इन्होंने मूवमेंट किया. जैसे बताया कि 7 प्रोवाइजर 139(1) के अंदर उन्होंने चेंजेस किए थे, जहां पे उन्होंने 3 कैटेगरी को कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग किया था. तो वो चीज ITR 1 के अंदर भी आ गई है. आई विल शो यू स्क्रीनशॉट नाउ डायरेक्टली, जहां पे उसके अंदर उन्होंने, दिस इज द लास्ट ईयर्स ITR. सो हम चेंजेस डिस्कस करते हैं. तो पहले यहाँ पे लिखा था कि ITR 1 फॉर पर्सन्स हु इज एन इंडिविजुअल हु इज नीदर अ डायरेक्टर और हैविंग एन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स. दिस वाज लास्ट ईयर्स ITR 1. Post that, in the month of January, they had issued a few the new ITR wherein they had categorically mentioned कि single ownership. So they had mentioned कि house property में अगर single ownership है then only you can file ITR 1. And after that there was a lot of hue and cry कि भाई बहुत सारे representations भी गए. Then they had changed it from single to joint. वो उसमें बाद में amendment ले आए, प्रेस रिलीज भी आया था, और अभी फाइनली जो आया है उसके अंदर उन्होंने ये वर्ड निकाल दिया है. सो ITR 1 कैन बी फाइल्ड इवन बाय जॉइंट ओनर्स, बट अदर कंडीशंस लाइक डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयर्स, वो सब अभी कंडीशन मेंटेन है. देन पासपोर्ट नंबर, आई थिंक लास्ट ईयर पासपोर्ट नंबर कंपलसरी नहीं था. इस बार जब जनवरी में आया था उन्होंने कंपलसरी बोला कि अगर पासपोर्ट नंबर है तो आपको देना पड़ेगा, बट लकीली इन द मंथ ऑफ मई वो क्लॉज वापस निकाल दिया है. आई विल शो यू द स्क्रीनशॉट आल्सो. सो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली लास्ट ईयर तक हम खाली 4 पार्ट में ब्रेक करते थे, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पेंशनर्स एंड अदर्स. अभी उन्होंने गवर्नमेंट को ब्रेक करके सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कर दिया है. PSU, पेंशनर्स, अदर्स एंड नॉट एप्लीकेबल, तो उसको एक्सपैंड कर दिया है. नाउ ऑल दिस थिंग्स यू विल सी इन द स्क्रीनशॉट. ये लास्ट ईयर का स्क्रीनशॉट आप देखेंगे तो यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में 4 दिया है, गवर्नमेंट, PSU, पेंशनर्स एंड अदर्स. और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इनफैक्ट पासपोर्ट नंबर का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो जनवरी में आया नोटिफाइड, वहां पे देखो यहाँ लिखा है इफ यस प्रोवाइड द पासपोर्ट नंबर. तो अगर पासपोर्ट है तो आपको देना पड़ता था, बट लकीली in the when they now they are notified, they have removed this passport card requirement. Even this nature of employment they have elongated. आप देखोगे सेंट्रल, स्टेट, पब्लिक, ये सब डिटेल में आ गया है. Now another change, as I said, 7th proviso to 139(1) के अंदर यहाँ पे लिखा है कि now it is very important to read, are you filing return of income under 7th proviso to 139(1) but otherwise not required to furnish. मतलब अगर मेरी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से कम है, मतलब आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, और मैं 139(1) में फाइल कर रहा हूँ, then I have to put a yes or no. If I put a yes, only then I have to mention the below amounts. अभी सबको कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि हमको एक कंपलसरी देना पड़ेगा. ऐसे कंपलसरी देने की जरूरत नहीं है. अगर आप बोलते हो कि मेरी लायबिलिटी सिर्फ 139(1) के 7th प्रोविजन की वजह से आई है, only then you have to put a yes and then you have to put the mention in the amount and whatever is applicable to you. आपने अगर फॉरेन ट्रैवल किया तो वहां पे अमाउंट लिखना पड़ेगा. अगर आप फॉरेन ट्रैवल में yes करते हो तो कंपलसरीली अमाउंट लिखना जरूरी है, वो आपको कंपलसरी है. बट अगर आप फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख या 12 लाख या आपकी 2.5 लाख या 3 लाख से ऊपर की इनकम है और आपको वैसे भी रिटर्न फाइल करना आता है, तो आपको यहाँ पे नो देके कुछ डिटेल देने की जरूरत नहीं है.
Now coming to the next point, this I think I'll share the details. UDIN number, I think this UDIN is not CA का UDIN, ये department का UDIN number है. I think we all know last October onwards UDIN department और document identification number उन्होंने compulsory कर दिया है. Any notice that comes from a department has to have a UDIN number on that. अब वही चीज हमको मेंशन करनी है हमारे रिटर्न के अंदर. फॉर एग्जांपल पहले मैं क्या देता था कि अगर सपोज में 139 डिफेक्टिव रिटर्न है या मेरा सर्च के प्रोसीडिंग से रिटर्न है, देन आई हैव टू एंटर द डेट ऑफ सच नोटिस. मुझे नोटिस का डेट मेंशन करना पड़ता था, बट नाउ आई हैव टू मेंशन द यूडिन नंबर आल्सो. कि मुझे अगर मैं इन रिस्पांस टू 139 या 142 कर रहा हूं या 153 के रिस्पांस में कर रहा हूं, आई हैव टू कंपल्सरीली मेंशन द यूडिन नंबर ऑफ दैट नोटिस. नाउ दिस इज अ सैलरी डिटेल. सैलरी के अंदर कोई चेंज नहीं है. ये आपका लास्ट ईयर का सैलरी का टेबल था, एज इट इज है. जो जनवरी में आया उन्होंने थोड़ा चेंज किया था. उन्होंने यहाँ पे 10 नंबर का और एम्प्लॉय का डिटेल थोड़ा ज्यादा मांगा था, वो अभी निकल चुका है. तो एज ऑफ नाउ द सेम टेबल एज पर द लास्ट ईयर इज प्रिवेलिंग. तो अभी कोई मेजर चेंज नहीं है लास्ट ईयर के अलावा. नाउ कमिंग टू डिडक्शंस, आई थिंक हमने ये सब डिडक्शंस जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किए, हम ये वी आर ऑल यूज्ड टू इट, हम लोग सब सालों से कर रहे हैं. आई हैव टू स्पेसिफिक मेंशन ऑफ टू मेजर अमेंडमेंट्स, 80EE एंड 80EE. नाउ 80EE क्या बोलता है? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी. And second is 80EB, which talks about in respect of purchase of electric vehicle. ये दो सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनेंस एक्ट 19 में ही आए हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स ने इसका बेनिफिट लिया होगा. तो 80EE क्या बोलता है कि इन केस ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल, सो वी शुड बी क्लियर, इज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, बाकी के लिए नहीं है. अगर आपने कोई हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द इंटरेस्ट दैट यू पे ऑन दैट लोन, आपको वो इंटरेस्ट का 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है 80EE के अंदर. तो आपका जो नॉर्मल बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको जो सेक्शन 24 में 2 लाख मिलता है वो तो मिलेगा ही, ये उसके ऊपर आपको 1.5 लाख का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80EA फॉर द हाउस प्रॉपर्टी. उसी कंडीशंस है. फर्स्ट कंडीशन है कि आपने जो घर लिया होगा उसका लोन सैंक्शन अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 के बीच में सैंक्शन होना चाहिए. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 45 lakhs. आपका 45 लाख से कम होना चाहिए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. एंड थर्ड, आपका यू शुड बी अ फर्स्ट टाइम बायर, मतलब आपके पास कोई दूसरा एसेंशियल हाउस उस टाइम पे सैंक्शन के टाइम पे नहीं होना चाहिए. इफ यू फुलफिल दिस कंडीशंस, देन आपको जो 1.5 लाख से एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, दैट विल बी ओवर एंड अबव योर सेक्शन 24 डिडक्शन. सिमिलरली 80EB ये नया सेक्शन लाया इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल. आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत एक्सपेंसिव है. आई थिंक इंडिया में इसका चलन इतना नहीं है, बट ग्रेजुअली इज गोइंग टू इंक्रीज. उसके लिए क्या लेके आए? इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल. अगेन खाली इंडिविजुअल के लिए ही 80EB है. अगर आपने कोई लोन लिया है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परचेज ऑफ एनी इलेक्ट्रिक व्हीकल, in that case you get an extra deduction of 1.5 lakhs on the interest under section 80EB. now the question is, सबको क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है? जो बिजनेसमैन होगा, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप होगा, वो तो 1.5 लाख आपका बिजनेस में खर्चे में डाल देगा, और जो आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी हायर डेफिशिएंट बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल मिल जाएगा. तो बेनिफिट कहाँ है? बेनिफिट सैलरीड पीपल को है. सैलरीड के लिए डिडक्शन बहुत कम होते हैं. आप यहाँ देखोगे तो यहाँ खाली इंडिविजुअल लिखा था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है. तो अगर कोई सैलरीड पर्सन है, उसने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है, उसको भी ये 1.5 लाख का डिडक्शन मिल सकता है. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज अंडर दिस सेक्शन. एंड इसमें भी कंडीशन है कि आपका जो सैंक्शन है वो 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 2023 तक होना चाहिए. तो आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलेगा. तो अकॉर्डिंगली ये दो नए सेक्शन जो आए उसकी वजह से सारा आईटीआई के अंदर चेंज हुआ है कि डिडक्शन उन्होंने डाल दिए. इवन 80LA जो है आपका जो 100% फॉर फर्स्ट 10 years मिलता है आउट ऑफ 15 years, जो आपको इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेक्टर, ये सर्विस सेंटर के लिए जो मिलता है, वो उसके लिए भी नया 80LA का प्रोविजन उन्होंने डाल दिया है. So all these changes we will discuss when we come to this. So you can see reductions. ये last year का जो reductions था, जब part C था it was very restricted. आप देखोगे 80C, 80D, 80G, उसके बाद में 80TDA and then others था. तो जनवरी में आया उसमें उनको elongate कर दिया, वहाँ सारे डाल दिए 80CCD, 1B, 1B, 2, 80DD सब कुछ डाल दिया इसके अंदर, 80U everything. And even the month of May they kept the same table. तो आप देखोगे यहाँ सब deductions डाल दिए और उसके अलावा डालें other than this अगला ड्रॉप डाउन कर सकते हो. तो even 80EA, EEB यहाँ डाल दिए. नाउ ये टेबल के अंदर जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर है वो यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, वेदर, जो मैंने हाईलाइट किया, वेदर एनी इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30th जून 2020 फॉर पर्पस ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6A. इफ यस देन यू हैव टू फिल इन शेड्यूल DI. इसका मतलब ये 30 जून का 31 जुलाई हो गया है. तो इसका मतलब अगर मैंने कोई पेमेंट किया है अप्रैल से लेके जुलाई के बीच में 2020 में फॉर द लास्ट ईयर पर्टेनिंग, उसके लिए मुझे शेड्यूल DI भरना है सेपरेटली. तो आई हैव टू मेंशन यस एंड उसके लिए मुझे शेड्यूल DI में जाना है. सो वन थिंग इज वेरी क्लियर. मेरा अगर सब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूं, PPF का एग्जांपल लेता हूं.
आई शो यू फर्स्ट शेड्यूल DI. So schedule DI जो है, I'll show you. It is in 3 parts. I'll directly show you the table. This is schedule DI. तो schedule DI क्या बोलता है कि column 1 is about the sections, कि कौन से sections के applicable है. Column 2 talks about eligible amount of deduction during 1920 and column 3 talks about April से जुलाई तक का deduction. अब मैंने जो part C में डाला है, जो I'm saying about this thing, जो मैंने डिटेल्स यहाँ पे डाला है, इसकी डिटेल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होकर यहाँ पे पार्ट 2 के अंदर आ जाएगी. इसका मतलब मेरा जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के अंदर का इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ कॉलम 2 में आएगा, एंड जो मैंने इन्वेस्टमेंट इन द लास्ट 4 मंथ्स किया है वो मेरा कॉलम 3 के अंदर आ जाएगा. तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है. नाउ फॉर एग्जांपल मैंने एक पीपीएफ का इन्वेस्टमेंट है, मेरे को 1.5 लाख का रिडक्शन लेना है. मैंने 70,000 इन्वेस्ट किया फरवरी में और बैलेंस 70,000 इन्वेस्ट किया मैंने लेट्स से जुलाई में, आज के दिन में इन्वेस्ट किया. तो मेरा जो पहले का 70,000 जो मैंने फाइनेंशियल ईयर 1920 में किया वो मैं पार्ट सी में डालूंगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम 2 में आ जाएगा. और जो मैंने अभी जुलाई में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे कॉलम 3 में मैनुअल डालना पड़ेगा. तब कॉलम 2 एंड कॉलम 3 का टोटल करके वो डिडक्शन लेंगे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि शेड्यूल डीआई में मुझे मैनुअली खाली वो डालना है जो मैंने 4 महीने में इन्वेस्ट किया है. बाकी लास्ट का फिगर जो मैंने मार्च से पहले इन्वेस्ट किया है वो ऑटोमेटिकली पार्ट सी से यहाँ पे कॉलम 2 के अंदर आ जाएगा. आई थिंक शेड्यूल डीआई इज क्लियर. पर शेड्यूल डीआई के 3 पार्ट है. पहला हमने देखा चैप्टर 6 से, क्योंकि वो ITR 1 है इसलिए वो होगा. बाकी तो ITR 1 में नहीं होंगे. आई शो यू वो आगे कब आएंगे. आई हैव द टेबल आल्सो. दिस इज अ शेड्यूल डीआई. तो पार्ट ए इस ITR 1 के अंदर देखोगे तो चैप्टर 6 है. पार्ट बी इज फॉर 10AA एंड पार्ट सी फॉर कैपिटल गेन. तो सिमिलर शेड्यूल डीआई हर ITR के अंदर आता रहेगा जो हमको अलग से फिल करना पड़ेगा. नाउ ऑप्शन टू चूज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स. आई थिंक हमने ITR 1 to 7 लास्ट से हमारा क्या इशू होता है कि मैंने कोई फॉर एग्जांपल मेरे IOB एंड इंडियन बैंक 2 बैंक है मेरे, और कोई भी कारण से मेरा IOB अकाउंट वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, प्री वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, और मेरा जो IOB बैंक अकाउंट है वो मेरे रिफंड के लिए डाला गया है. तो अभी तक क्या इशू होता था, रिफंड रिजेक्ट होता था. आई यूज्ड टू फर्स्ट मेक श्योर कि मेरा IOB कैसे भी करके वैलिडेट करे, या दूसरा बैंक वैलिडेट करूं फिर उसको रिक्वेस्ट री इशू करूं. तो ऑल दिस थिंग्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया है. दे आर नाउ गिविंग अ ऑप्शन टू चूज मल्टीपल बैंक अकाउंट्स. तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. दिस इज लास्ट ईयर्स टेबल. लास्ट ईयर हमको नाम देना पड़ता था कि ऑल बैंक अकाउंट्स, और एक हम टिक करते थे कि इसमें रिफंड दे दो. अभी उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, अभी उन्होंने ऑप्शन ये दिया है, डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया, मिनिमम 1 अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर रिफंड. In case of refund, multiple accounts are selected for refund, then refund will be credited to the one account decided by CPC after processing the return. तो फॉर एग्जांपल मैंने IOB एंड मेरा दूसरा इंडियन बैंक दोनों को मैंने टिक किया है रिफंड के लिए. कोई कारण से IOB मेरा प्री वैलिड नहीं हो पा रहा, प्रोसेस हो चुका है, तो देन आई थिंक डिपार्टमेंट के नाउ डायरेक्टली इशू टू द IDBI जो मेरा इंडियन बैंक फंड डायरेक्टली वो इशू कर देगा. तो अगर ऑप्शन है मल्टीपल रिफंड अकाउंट चूज करने के लिए. This was about ITR 1. तो ITR 1 हमने कवर कर लिया. Now हम जैसे जैसे ITRs में जाएंगे जो पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, we will just glance through it. हम वापस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम नए अमेंडमेंट लेंगे. तो ITR 2 में जैसे मैंने बताया ये 139(1) का जो प्रोविजो है वो वहाँ पे डाल दिया है, ये भी कॉलम यहाँ पे. Now type of company to be reported. Last year I think we all know कि अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो, आपको कंपनी का डिटेल देना पड़ता था. फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ द कंपनी, पैन, whether shares are listed or not, DIN number, ये आपको देना पड़ता था. इट वाज अ वेरी कम्बरसम रिक्वायरमेंट. उसका टेबल भी आई शो यू हाउ इट इज. दिस वाज लास्ट ईयर्स टेबल. मेरा कोई सपोज क्लाइंट है जो डायरेक्टर है, उसके पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स भी हैं, तो उसको पैन नंबर, कंपनी का डिटेल्स, शेयर एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ट्रांसफर ड्यूरिंग द ईयर, सब मुझे देना पड़ता था. नाउ ये टेबल में एक चीज ऐड किया है उन्होंने, टाइप ऑफ द कंपनी ऐड कर दिया है. इसका मतलब अब मुझे ये भी देना पड़ेगा कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सेक्शन 8 है, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, वो सब मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा. अ न्यू कॉलम व्हिच हैज बीन एडेड हियर. Now type of employment मैंने बताया एक्सटेंड कर दिया है, सेम थिंग एज पर लास्ट थिंग. Now मैंने बताया पैन आधार. They have in the Finance Act number 2 of 2019 they have inserted subsection 5E to allow interchangeability of Aadhaar and PAN. तो उन्होंने आधार एंड पैन को इंटरचेंजेबल अलाउ कर दिया है. उसके लिए आप देखोगे तो मैक्सिमम प्लेसेस पे, आई थिंक ऑल दिस प्लेसेस, आई लिस्ट ऑल दिस प्लेसेस के जहां पे ITR 2 कैन बी फाइल्ड, सॉरी ऑन दिस प्लेसेस वेयर इन दिस पैन आधार कैन बी इंटरचेंजेबली. तो फॉर एग्जांपल मेरा कोई डेटर है जहां पे मेरा 1 लाख से ज्यादा का बेड डेट है, तो आई हैव टू कंपल्सरी प्रोवाइड अ पैन नंबर. अभी मेरे पास ऑप्शन है कि मेरा अगर वो इंडिविजुअल है, मेरे पास पैन नंबर नहीं है, तो मैं उसका आधार नंबर डाल सकता हूँ. सिमिलरली बायर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम सबको पता है लास्ट से अमेंडमेंट आया था, अगर आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है तो एज अ सेलर ऑल्सो आपको बायर की डिटेल देनी पड़ती है कि आपने किसको सेल किया है. तो उसमें भी अगर बायर का पैन नंबर नहीं है, आई कैन मेंशन द आधार नंबर. एंड लाइक अपने क्लबिंग के अंदर या अपने KMP की जगह जहां जब भी पैन नंबर रिक्वायरमेंट है, वहां यू कैन नाउ कोट आधार नंबर. तो अगेन अ वेरी वेलकम अमेंडमेंट. दिस इज हाउ इट इज डन नाउ. पहला देखोगे हर जगह पैन मेंशन किया था, नाउ इट इज पैन ऑब्लिक आधार. So everywhere there's a change of wherein you can, interchangeability of PAN and Aadhaar can be done now.
Now coming to LTCG, will come to that now. हमको पता है कि last year there was a change. हमने जो कैपिटल गेन का सेक्शन था, this is a table. हमारा there was a major amendment in the section of capital gain wherein they had said कि section 1038 has been removed and any payment of dividend payment because of this exceeding 1 lakh rupees shall be taxable under long term capital gain at 10%. तो 112A के अंदर 10% आपका टैक्सेबल था. उसके लिए क्या किया था, लास्ट ईयर का जो पीडीएफ आया था उसके अंदर उन्होंने टेबल दिया था. सॉरी, पीडीएफ के अंदर कुछ नहीं था, जो यूटिलिटी आई थी उसके अंदर दे हैड मेंशन एंटायर टेबल, जहां पे हमको स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देना पड़ता था. हमारे अगर 10 स्क्रिप्ट मैंने सेल करी है तो 10 स्क्रिप्ट का मुझे स्क्रिप्ट वाइज डिटेल देना पड़ता था. देन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केम आउट क्लैरिफिकेशन के नहीं, आप एग्रीगेट जरूर चल जाएगा. तो आपने एग्रीगेट बंच करके भी डिटेल लास्ट ईयर हमने दिया है. बट नाउ इन द पीडीएफ दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस एंटायर टेबल. अब पीडीएफ में भी टेबल आ गई है एंड आई एम श्योर यूटिलिटी के अंदर भी टेबल आएगी, जहां पे इन्होंने स्क्रिप्ट वाइज डिटेल मांगा है कि आपका स्क्रिप्ट का आईएसएन कोड, आपका कंसीडरेशन वैल्यू, कॉस्ट, आपका अगर ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन का बेनिफिट लेना है तो वो डिटेल देना पड़ेगा, एफएमवी, एवरीथिंग. सो दिस टेबल इज नाउ टू बी गिवन स्क्रिप्ट वाइज. तो हम जो बात करेंगे क्लाइंट्स को भी हम दे सकते हैं कि भाई एटलीस्ट यू ट्राई टू फिल दिस टेबल जब तक आपका टाइम है, क्योंकि 112A इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. सिमिलरली अगर आप देखोगे तो नॉन रेजिडेंट्स के लिए जो 115AD1B3 प्रोवाइजो जो है उसकी भी सेम टेबल यहाँ पे डाल दी है. तो दिस एलोंगेटेड डिटेल हमको अभी देना पड़ेगा इस साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रोविजंस के अंदर. नाउ कमिंग टू दिस, नाउ कमिंग टू सेक्शन 57, यहाँ पे एक्सपेंसेस को इन्होंने एलोंगेट कर दिया है. फैमिली पेंशन को अलग दिखा दिया है, अदर देन फैमिली पेंशन को अलग दिखाया है. नाउ डेप्रिसिएशन के अंदर यहाँ ब्रैकेट में डाल दिया अवेलेबल ओनली इफ इनकम इज ऑफर्ड अंडर 1C ऑफ शेड्यूल ओएस. तो 1C ऑफ शेड्यूल ओएस यहाँ नीचे दिया हुआ है. तो इसका मतलब अगर आपने कोई रेंटल इनकम मशीनरी की दिखाई है तो ही आपको उसका डेप्रिसिएशन मिल सकता है. तो दे हैव कैटेगोरिकली मेंशन दिस नाउ ओवर हियर. नाउ डिडक्शंस की टेबल, आई थिंक दिस इज एंटायर टेबल ऑफ डिडक्शंस. हमने देखा कि ये सारे डिडक्शंस की टेबल था, उसमें दो ऐड कर दिए हैं, 80EE and EEB. Now coming to pass through entities, I think this is will not be applicable to most of us, so I'll just tell you in brief. हम इसको आगे चले जाएंगे. फिर इनकम टैक्स में प्रोविजन है जहां पे उन्होंने कुछ एंटिटीज को स्पेशली पास थ्रू एंटिटीज का बेनिफिट दिया है कि फॉर एग्जांपल मैं एक रियल एस्टेट फंड हूं, मैंने मेरे इन्वेस्टर से कुछ पैसा लिया और मैंने एज इट इज मैंने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया. उसका जो रेंटल इनकम आ रहा है वो जो दो मेरे पास आ रहा है मैं डायरेक्टली यूनिट होल्डर्स को दे देता हूँ, तो टैक्सेबिलिटी मेरी नहीं होगी, वो यूनिट होल्डर्स की टैक्सेबिलिटी होगी. तो जो पास थ्रू मैकेनिज्म डेवलप किया है उसके हिसाब से पास थ्रू इनकम टैक्सेबल थी. अभी अमेंडमेंट ये आया है कि इवन द पास थ्रू लॉसेस, फॉर एग्जांपल मुझे कुछ लॉस हुआ है और मैं मेरे यूनिट होल्डर्स को पास ऑन करता हूं, तो इवन दैट लॉस इज नाउ अलाउड टू बी सेट ऑफ बाय द इंडिविजुअल यूनिट होल्डर्स. तो जो चेंज आया था उसकी वजह से जो आईटीआर के डिस्क्लोजर में चेंज आया, क्विकली गो थ्रू दैट ओनली. दिस इज अ चेंज. लास्ट ईयर हमारा ये शेड्यूल पीटीआई था, उसके अंदर अभी नया डाल दिया है कि शेयर ऑफ करंट ईयर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड. तो अगर मैं रेट फंड हूं, मैंने कोई डिस्ट्रीब्यूट लॉस किया है मेरे शेयर होल्डर को, तो यूनिट होल्डर यहाँ दिखा सकता है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कवर्ड अंडर दिस आ गया. तो ये भी इस साल नया प्रोविजन जो उन्होंने इफेक्ट दिया है. नाउ शेड्यूल डीआई, एज आई सेड कि भी आईटीआर 2 के अंदर कैपिटल गेन भी आ सकता है. तो पार्ट 1 फॉर चैप्टर 6 से एंड पार्ट 2 बाय फॉर कैपिटल गेन डिडक्शन. कैपिटल गेन में भी सेम है, कॉलम 2 ऑटोमेटिक फिल होगी, कॉलम 3 आपको फिल करनी पड़ेगी जो आपने 4 महीने में इन्वेस्टमेंट किया है. आई थिंक वो सितंबर तक है वो ऑप्शंस में. सो दिस इज अ नॉर्मल चेंज सरचार्ज का. नो सरचार्ज को इन्होंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है. एक आप सबको ध्यान होगा 115EEB इज अ स्पेशल सेक्शन जहां पे 25% टैक्स सरचार्ज है फॉर कैपिटल इनकम अंडर 68, 69, 69A. तो उसको यहाँ पे अलग से दिखाना है और बैलेंस सरचार्ज को अलग से दिखाना है. सो दिस इज अ नॉर्मल ब्रेकअप दैट दे हैव डन. 89 के अंदर लिखा है 10E फॉर्म सबमिट करना है, दैट इज ओके. मल्टीपल रिफंड्स यू ऑलरेडी डिस्कस. नाउ फॉर नॉन रेजिडेंट्स, आईटीआर 1 नॉन रेजिडेंट्स कैन नॉट फाइल, तो आईटीआर 2 फाइल करेंगे नॉन रेजिडेंट्स. उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, वहां पे उन्होंने फॉरेन बैंक अकाउंट का ऑप्शन दे दिया है. फॉर एग्जांपल मेरे कितने नॉन रेजिडेंट क्लाइंट्स जिनके पास फॉरेन बैंक अकाउंट का ऑप्शन नहीं था, वो इंडिया में बैंक अकाउंट में पैसा लेते थे फिर ट्रांसफर करते थे. बट नाउ दे हैव एन ऑप्शन ऑफ मेंशनिंग द फॉरेन बैंक अकाउंट. तो यहाँ लिखा है कि नॉन रेजिडेंट्स हु आर क्लेमिंग इनकम टैक्स रिफंड एंड नॉट हैविंग बैंक अकाउंट इन इंडिया मे एट देयर ऑप्शन फर्निश द वन ऑफ द डिटेल्स ऑफ फॉरेन बैंक अकाउंट. तो उसमें उनको सीरियल नंबर, स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड इज नथिंग बट द IFSC कोड दैट वी हैव, नेम ऑफ द बैंक, कंट्री ऑफ लोकेशन एंड IBN नंबर, जो इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर है वो भी उनको देना पड़ेगा. तो ये देने से उनका रिफंड डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा. एंड जिप कोड, आई थिंक जिप कोड नथिंग बट पिन कोड जो हमारे यहाँ बोलते हैं, तो जहाँ बहुत जगह जहाँ भी फॉरेन बैंक अकाउंट, फॉरेन डिटेल्स की एसेट्स की, वहां पे सब जगह उन्होंने जिप कोड का ऑप्शन दे दिया है कि आपको जिप कोड मेंशन करना पड़ेगा. शो यू डिटेल्स. सो फॉर एग्जांपल मेरा कोई फॉरेन बैंक अकाउंट है, वहां पे मुझे अभी एड्रेस के साथ में कंट्री और जिप कोड देना कंपलसरी हो गया. दिस इज नॉर्मल चीज व्हेन इट कम्स टू जिप कोड. So ITR 2 was more or less very simple, इसी तरह से था. Now ITR 3 is PGBP. So coming before going to the ITR 3, let us see this table.
ये जो टेबल है जहाँ रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंसी या RBNOR का डिटेल दिया है, ये लास्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अगर मैं रेसिडेंट हूँ तो मैं रेसिडेंट क्यों हूँ, लाइक मैंने इंडिया में 180 डेज से ज्यादा स्पेंड किए, या मैं नॉन रेसिडेंशियल क्यों हूँ, तो एवरीथिंग हैव टू मेंशन अगेन। तो ये टेबल अभी भी है, तो ये टेबल हमको अभी भी देनी पड़ेगी, वेरी कंबरसम टेबल। द ओनली इशू दैट वी आर फेसिंग इज कि अगर नॉन रेसिडेंट हो तो कौन से जुरिसडिक्शन के हो, उसका टिन नंबर क्या है, आप PI हो सिटीजन हो तो उसका कितना डेज रहे, ये सब कैलकुलेट करके हमको अभी भी देना पड़ेगा। So this is the table that remains the same. ये 139(1) वाला टेबल हमने डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट नंबर डिस्कस कर चुके हैं, now type of the company डिस्कस कर चुके हैं, unlisted shares वाला। Now coming to a very important amendment on Finance Act 2020. Finance Act 2020 में section 44A में amendment आया था, जिसमें बोला गया भी clause A के अंदर, this is exactly what I have reproduced, that if you are carrying on business and if your total sales, turnover or gross receipts as the case may be in business exceeds 1 crore in any previous year, तो टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है, provided if your aggregate of all amounts received including amount for sale, turnover or gross receipts during the year in cash does not exceed 5% of total amount, or and aggregate of all the payments made including amount incurred for expenditure in cash does not exceed 5% of said payment, then the words 1 crore will be substituted by 5 crore. इसका मतलब अगर मेरा 1 करोड़ से ऊपर होता है तो मेरे को टैक्स रेट करानी कंपलसरी होती है, 44AD को एक बार छोड़ दो, कंपलसरी है। अब अगर मेरा टोटल कैश सेल्स 5% से कम है या कैश पेमेंट एक्सपेंडिचर्स 5% ऑफ टोटल पेमेंट से कम है, देन 5 करोड़ तक मुझे टैक्स रेट कराने की जरूरत नहीं है। नाउ सबको एक क्वेश्चन आया कि ये तो एप्लीकेबल नेक्स्ट ईयर से है। फ्रेंड्स, इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए एप्लीकेबल है। तो हम लोग जो अभी जो ऑडिट करने वाले हैं लास्ट ईयर की, उसमें भी ये एप्लीकेबल है। एंड आपके जो भी क्लाइंट्स हैं जहाँ पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होता है, टू सी के उनको टैक्स रेट एप्लीकेबल नहीं होती है। तो फॉर एग्जांपल मेरे को ट्रेडर है, क्लॉथ का ट्रेडर है जिसका 3-4 करोड़ का टर्नओवर रहता है, बहुत सारे होते हैं, कपड़े के ट्रेडर है, केमिकल के ट्रेडर है, तो जो वो जो 3-4 करोड़ की हमको टैक्स रेट लगता है कि हमारे आने वाली है, दिस ईयर इट विल नॉट कम। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, अवर क्लाइंट्स आर स्मार्टर देन अस, उनको ये प्रोविजन पता है कि इस साल में टैक्स ऑडिट नहीं है, दे विल, सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल नाउ। एंड सेकंड, अगर मैंने टैक्स ऑडिट, फॉर एग्जांपल व्हाट इफ आई डोंट, मैं टैक्स ऑडिट तो है नहीं, तो मेरा अगर टर्नओवर 3 करोड़ का है तो मुझे क्या करना है? तो इन दैट केस आपका जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है आपको वही अपलोड करना है, एंड देन अगर स्क्रूटनी में आता है देन यू हैव टू गिव डिटेल्स, अदरवाइज आई थिंक देयर इज नथिंग टू बी डन इन दैट। सो विद दिस अमेंडमेंट, जहां पे अमेंडमेंट आया कि जहां पे आपको ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दिया, ऑप्शन दे दिया टैक्स ऑडिट नहीं करने का, उसको भी इन्होंने ITR 3 के अंदर डाल दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज अमेंडमेंट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021, हमको ये ध्यान रखना है चीज। और इसकी वजह से ये देखेंगे आप, तो दिस इज द टेबल दैट हैज अंडरगॉन चेंज। पहले बोला था आर यू लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, इफ यू पुट अ यस और अ नो, नाउ वी हैव टू मेंशन if you are declaring income under 44AB, if you are liable for tax audit, if your gross receipt exceeds 1 to 5, अगर आपको 5% का थ्रेशोल्ड मीट होता है कि नहीं, ये सब हमको देना पड़ेगा, एंड देन वी कैन से वेदर वी आर लायबल फॉर टैक्स ऑडिट और नॉट। तो ये सब डिटेल्स इन्होंने अभी ITR 3 के अंदर डाल दी है। सिमिलरली आप यहाँ देखा कि अगर आपको 44AD है, अगर आपको सपोज आपको ग्रॉस टर्नओवर है थ्रू बैंकिंग, दे हैड मेंशन दैट एनी प्रिस्क्राइब्ड लेटर मोड में भी आप कर सकते हो, प्रिस्क्रिप्शन अभी बाकी है, बट दिस ITR में अभी आ चुका है। Now last year you can see government has made a lot of amendments when it comes to the electronic mode को preference देने के लिए, तो उसके लिए इतने सारे sections में amendment last budget में लेके आए थे 19 के अंदर। I'll cover a very important, जैसे 43A 40A3 के अंदर लेके आए थे कि 10,000 से ज़्यादा आपको कैश में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 80JJAA के अंदर है कि आपको 80JJAA का बेनिफिट लेना है तो 30% से ज़्यादा आपको जो बेनिफिट लेना है, only if it is paid by other than cash. So government is after us now to promote more of digital payments now. Next amendment was 43B. We all know कि 43B क्या बोलता है कि अगर आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर पेमेंट किया तो आपको अलाउड मिलता है। उसमें बैंक इंटरेस्ट था, कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट था, पर उसके अंदर NBFC का इंटरेस्ट नहीं था। तो नाउ दे मेड एन अमेंडमेंट दैट एनी लोन और बोरिंग का जो इंटरेस्ट है फ्रॉम अ डिपॉजिट टेकिंग NBFC और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट NBFC will be allowed the deduction only on actual payment basis. तो वो अमेंडमेंट भी ये लोग लेके आ गए। सिमिलरली ITR में अंदर अमेंडमेंट कर दिया। You can see here, this is the table. In 43B, clause DA has been added, जहाँ पे NBFC का interest allowable only on actual payment basis पे किया है। Now coming to salary, I think we have discussed same thing as per ITR 1 and 2. No major change. This is PAN, Aadhaar interchangeability. Same thing, nothing to be done. Now depreciation rate. आपको ध्यान होगा 23 अगस्त 2018 को 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत अच्छा अनाउंसमेंट किया था, because at that time I think the auto sector was under distress. It still is. उस टाइम बोला कि अगर आप व्हीकल परचेस करते हो
23 अगस्त से लेके 31 मार्च 2020 तक, तो आपको एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन मिलता है। नाउ वो जो डेप्रिसिएशन मिलता है उसके लिए क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरा ट्रक है, अब ट्रक का मेरा रेट 30% है, तो 30 + 15 कम टू 45%। हमारे ब्लॉक तो खाली 3 ही है, 15, 30 और 40, तो उसके लिए नया ब्लॉक इंट्रोड्यूस कर दिया 45% रेट का, कि भाई जिनको वो बेनिफिट लेना है, 45% का न्यू ब्लॉक वाज एडेड। दिस वाज द नोटिफिकेशन व्हिच केम ऑन 20 सितंबर, जहां पे उन्होंने बोला कि आपको 15% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। और उसकी वजह से ये आप देखोगे तो WDV जो हमारे पहले 3 ब्लॉक थे 15, 30 और 40, अभी वो 4 लोग हो गए, 15, 30, 40 और 45, तो 4 blocks are now there. Similar amendment has been made in all the ITR जहां जहां भी कंसर्न है। ये मैंने बताया जैसे आपका, हाँ, नाउ कमिंग टू दिस, एज आई सेड, अगर मैंने कोई इमोबल प्रॉपर्टी सेल करी है तो मुझे बायर का डिटेल देना पड़ता है, वहां भी पैन ऑब्लिक आधार कर दिया है, एवरीवेयर दे हैव मेंशन आधार नंबर अलोंग विद द पैन नंबर। दिस इज योर डिस्कस्ड रिगार्डिंग द एग्जम्प्ट इनकम, दिस हमने कर दिया है। 57 का ये डिस्कस कि ब्रेकअप किया है इन्होंने, इसे ऑलरेडी डन। पास थ्रू इनकम लॉसेस, जैसे सेट, ये देखो यहाँ पे जैसे हाउस प्रॉपर्टी लॉस है, नॉर्मल लॉस एंड पास थ्रू इनकम से जो लॉस आया है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मेरा नॉर्मल, मेरा पास थ्रू लॉस, सो एवरीथिंग इज वी हैव गिवन एन ऑप्शन ऑफ शोइंग दिस पास थ्रू लॉस आल्सो नाउ। ये डिडक्शन के अंदर 80 EE डाल दिया है। ओके, पैन आधार कर दिया, नॉर्मल चीज है, नॉर्मल चेंज, नो मेजर चेंज इन दिस, एग्रीकल्चर इनकम नो मेजर चेंज। ये देखिए पास थ्रू लॉसेस का अगेन ये कैरी फॉरवर्ड के अंदर शेड्यूल पीटीआई के अंदर भी डाल दिया है। नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स, अगेन आई विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम, बट अ वेरी सिंपल थिंग, अगर किसी का ट्रांसफर प्राइसिंग अप्लाई होता है, किसी को प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ है, बिकॉज ऑफ विच मेरे को एक्सेस अमाउंट लगता है कि भाई एक्सेस एंटरप्राइज के पास में है, विच आई हैव टू रीपार्टेड टू इंडिया, तो उसके लिए पहले क्या होता था, मेरे को नोशनल इनकम दिखानी पड़ती थी। उन्होंने ऑप्शन दिया फाइनेंस एक्ट 19 के अंदर दैट इन केस एक्सेस मनी ऑफ पार्ट आप रीपार्टेड नहीं कर पाते हो, तो उसके ऊपर आप एडिशनल इनकम टैक्स 18% पे कर दो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए शेड्यूल टीपीएसए नया इंट्रोड्यूस किया, एंड दैट शेड्यूल टीपीएसए आई शो यू नाउ, दिस इज अ शेड्यूल टीपीएसए, जहां पे बोला कि भी 18% आप जो टैक्स पे किया है वो एक्सेस मनी के ऊपर, उसको आप कैसे पे करते हो उसका डिटेल सब यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगेन रिलेटेड टू ट्रांसफर प्राइसिंग, दिस इज शेड्यूल डीआई, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स 10AA 54 सबका डिटेल्स 3 पार्ट में डाला हुआ है, सेम वी हैव डिस्कस। सरचार्ज को ब्रेक किया 15% एंड दिस इज नॉर्मल थिंग। now this is a normal disallowance, okay, now 40BA 40B जो हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप का अगर मेरा इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन अलाउ नहीं होता है, तो 40B के अंदर था, AOPBI के अंदर डिस्क्लोजर सेपरेटली नहीं था, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। देखो लास्ट ईयर में यहाँ पे दिया है H नंबर में, अमाउंट ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन पेड टू अ पार्टनर और मेंबर, 40B में डिसअलाउंस था, अभी यहाँ 40B/BA भी कर दिया, तो किसी का AOPBI है तो उसको भी डिस्क्लोजर यहाँ पे उसको देना पड़ेगा। So ITR 3 is mainly for the business profession as we discussed. Now coming to ITR 4 on this Sugam. ITR 4 again हम उस पर आते हैं, सीधा डिस्क्रिप्शन में आते हैं। ITR 4 coming to the changes. First and foremost, last year के जो clauses है same is now applicable. जो जनवरी में आया उन्होंने सिंगल ओनरशिप डाला, वो हटा के अभी जॉइंट कर दिया, तो इवन जॉइंट ओनरशिप जिसके पास में है वो भी ITR 4 फाइल कर सकता है। Now आई थिंक ये डिटेल हम सबको पता है कि एक ही डिटेल होती थी, डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जनवरी में क्या आया, जनवरी में जो ITR 4 आया, वहां बोला कि अगर आप कोई पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हो तो आपको सारे पार्टनर्स के डिटेल एंड पार्टनरशिप फॉर्म के डिटेल्स भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये टेबल मांगा गया था कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, शेयर ऑफ पार्टनर्स, पैन ऑफ पार्टनर्स, एवरीथिंग यू हैव टू गिव इन द ITR 4। बट जो मई में आया, ये देखो ये लास्ट ईयर का जनवरी का था, जहां पे इन्होंने 139(1) के बाद में कॉलम नंबर A, 25 एंड 26 यहाँ पे बोला आर यू पार्टनर इन अ फर्म, इफ यस गिव डिटेल्स ऑफ द फर्म एंड ऑफ द पार्टनर आल्सो। पर जो अभी मई में आया है वहां पे A, 25 एंड 26 निकाल दिया है, सो यू कैन सी नाउ इट्स ओनली A, 26 तक ही है, अभी वो रिक्वायरमेंट देने की नहीं है। नाउ सैलरी में कोई चेंज नहीं है, सेम शेड्यूल ऑफ द सैलरी, नथिंग टू बी चेंज इन सैलरी। डिडक्शंस के अंदर ऐड कर दिए हैं 80EE एंड EEB, वी हैव डिस्कस्ड दिस। नाउ दिस इज फॉर द शेड्यूल्ड पार्ट C, अगेन सेम थिंग, टर्नओवर, ओके, दिस इज द सेम। नाउ ये टेबल हम सबको याद है, लास्ट ईयर आई थिंक व्हेन वी फाइल ITR 4 for 44AD we have to give this table। इसके अंदर भी कंपल्सरीली 4 रिक्वायरमेंट्स है, फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स, योर इन्वेंटरीज, कैश एंड बैंक बैलेंस एंड योर डेटर्स। मेरे को ये 4 चीज कंपल्सरी देनी पड़ती थी। एंड उसके बाद में जो जनवरी में अमेंडमेंट आया, जनवरी में उन्होंने बोला कि नहीं आप वो मत दो, आप सिर्फ कैश बैंक बैलेंस का मूवमेंट दे दो, तो इन दैट केस हमको वो टेबल निकल गई थी जनवरी में। But now in the month of May they have removed the cash requirement, they have gone back to the last year's table wherein they said कि भाई ये detail जो last year है वो detail you give again with the same compulsion of 4 items, so this table remains the same as for the last year। Schedule DI as we say is the same, schedule DI में कोई change नहीं है। I think with this I think ITR 4 is done। Now coming to ITR 5,
ITR 5 मेजरली वी विल डिस्कस अबाउट द यूडिन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 44AB का अमेंडमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे उन्होंने बोला कि भी आपका एप्लीकेबल है कि नहीं, 5% का थ्रेशोल्ड क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है कि नहीं। दिस इज 43B वेयर वी कैन सी दैट क्लॉज DA ऐड कर दिया है। नाउ ऑप्शन टू चूज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, नाउ ITR 5 एंड ITR 6 के अंदर पहले ये ऑप्शन नहीं था, यू कैन सी हियर इट इज लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट। नाउ दे हैव मेंशन अनदर कॉलम ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट एंड डीम्ड लेट आउट, तीन क्राइटेरिया में उनको ब्रेक कर दिया है। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है उसके लिए भी सेपरेट रिपोर्टिंग हो गया है। सो अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ शेड्यूल बीपी, नाउ हमको उसके लिए ये चार चीजें तो ABC में लिखा है, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस रिफर टू 115B, डिडक्शंस एडिशंस अंडर 30 to 43B एंड इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, ये चारों चीज मुझे अलग से देनी पड़ेगी इन दी ITR। सो दिस इज द लास्ट ईयर ITR, यहाँ पे खाली एक लाइन आइटम था प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस अंडर 115B, उसको एक्सटेंड कर दिया है, अलग से शेड्यूल डाल दिया है E नंबर का, जहाँ पे कंपटीशन ऑफ इनकम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस भी इन्होंने ऐड कर दिया है। सो दे आर बेसिकली एलोंगेटेड द लिस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ गिविंग प्रॉफिट अंडर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। नाउ दिस वी हैव डिस्कस डेप्रिसिएशन का 45% का अलग से ब्लॉक डाल दिया है, दिस वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। नाउ कमिंग टू कैपिटल गेन्स 112A वी हैव डिस्कस कि वो सेम टेबल 112A के यहाँ पे डाल दिया। नाउ फॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफशोर फंड्स, वहां पे सेपरेट रिपोर्टिंग उन्होंने दे दिया है कि आपको अलग से दिखाना पड़ेगा इनकम अगर वहां पे है फ्रॉम ऑफशोर फंड्स है तो। दिस इज द लॉस वी हैव डिस्कस कि नॉर्मल लॉस, PTI लॉस दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नाउ कमिंग टू डिडक्शंस 80 LA and all these deductions as we discussed have been added now. Now this is the pass through losses, current year share of loss, current year income, everything is mentioned here. Second year adjustment हमने डिस्कस किया, TPS शेड्यूल वो भी यहाँ पे आ गया है। Now schedule DI is the same, part 3 parts वाला। Surcharge you have discussed. Now coming to ITR 6. No, ITR 6 के मैं आऊँ उसके पहले let me discuss a very important amendment that came in last December. It came in September basically, but it passed in December. It says that there were Taxation Laws Amendment Act 2019, एक नया amendment act लेके आए थे जहाँ पे उन्होंने alternate tax regimes हमको दिए थे। So what they've come up with that, you know, that they had come up with 2 booster packages for corporates. दो new scheme announce करी थी। Scheme 1, एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनीज। अभी क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक ये ITR से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे वर्किंग के लिए, कि इन्होंने 2 स्कीम्स लेके आए। पहला स्कीम क्या था कि अगर आपको एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कंपनी है तो या तो करंट शेड्यूल, करंट जो कर रहे हो उसको फॉलो करो, या आप एक नए टैक्स रेट में जाओ जहां पे 22% इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट विदाउट मैट, विदाउट एनी इंसेंटिव और एग्जम्पशंस। इन दैट केस रेट विल बी 22% एंड देन इंट्रोड्यूस सेक्शन 115BAA। इसके अंदर रेट क्या होगा, 22% टैक्स रेट प्लस 10% कंपल्सरी सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस 4% कम्स टू 25.17%। तो फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है, इसका टर्नओवर 50 करोड़ का है, इन द तो उसमें रेट कैसे देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 17-18 में उसका टर्नओवर क्या था, 50 करोड़ था, उसके लिए उसका रेट है 25%। तो 25% प्लस 4% कम्स टू 26%। अब मैं वो 26% लेता हूं, या मैं इसको कंपेयर करूं ये स्कीम 1 से तो 25.17% है। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा, विच एवर इज बेनिफिशियल। अब उसमें मुझे क्या क्या फैक्टर्स देखने हैं, पहला कि मेरी मैट क्रेडिट पड़ी है, तो अगर मेरी पड़ी है देन आई विल गो फॉर द एक्जिस्टिंग स्कीम कि मैं मैट क्रेडिट को यूज करूंगा, अदरवाइज द मैट क्रेडिट गेट्स लैप्स्ड। सेकंड, मेरे एडिशनल डेप्रिसिएशन के वजह से कुछ लॉस पड़ा है, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन लॉस पड़ा है, अगर है देन आई विल प्रेफर टू गो टू एक्जिस्टिंग एंड देन आई विल गो टू द न्यू वन। क्योंकि अगर मैं नए स्कीम 1 में जाता हूं तो मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन का लॉस, बाकी जितने इंसेंटिव्स मैंने लिए हैं, या मेरे ये जो मैट का क्रेडिट फॉर्ड है वो सब मेरा लैप्स हो जाएगा। सो दिस ट्रेड ऑफ यू टू डू नाउ कि मेरी कंपनी को कहां पे जाना है और कौन सा बेनिफिशियल है। स्कीम 2 वाज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग, मेरा कोई 1 अक्टूबर 2019 के बाद में कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करी है और उसने मार्च 23 से पहले कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन किया है, उसके लिए बहुत अट्रैक्टिव स्कीम है कि जहां लोअर रेट ऑफ 15% लगता है, मुझे मैट भी नहीं है, 15% प्लस 10% ऑफ ए सरचार्ज एंड प्लस 4% कम्स अराउंड 17.5%। तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है। अगर मैं उसमें जाता हूं तो मुझे ऑप्शन स्कीम नंबर 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ दिस इज अ समरी। पहले अगर मेरा अभी करंटली क्या है, मुझे 30 एंड 25 डेज में टर्नओवर है कि मुझे 7% सरचार्ज लगेगा, 12% लगेगा बेस्ड ऑन माय इनकम है, बट नए में कंपलसरी सरचार्ज है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। तो दिस ट्रेड ऑफ वी हैव टू चूज फॉर आवर क्लाइंट्स कि मुझे कौन सा मेरे बेनिफिशियल है, कौन सा मुझे लेना है, बिकॉज ऑप्शन वंस एक्सरसाइज, फॉर एग्जांपल मैं नई स्कीम में चला गया तो मैं पुराने में वापस नहीं आ सकता। You know, if I stay in the existing, it is okay. I have an option of choosing it later date. But if I choose 115BAA, I cannot go back to the existing structure. वो बहुत clear उन्होंने लिखा हुआ है. Now, there was this all deduction that stand to lose. Majorly हमारे जो applicable होता है वो additional depreciation है. For example, मेरे कोई client ने 2 साल पहले बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया मशीनरी के अंदर और 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन भी क्लेम किया, उसका बहुत सारा अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है,
तो आई विल से कि भी तुम एग्जिस्टिंग में जाओ, जब तक वो खत्म नहीं हो तो एग्जिस्टिंग में उसको रहो। सो इसके अलावा तुम्हारे साइंटिफिक डायरेक्शन से जो है, या तुम्हारे डोनेशन में नेशनल लेबोरेटरी है, या 35 AD है विच इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग यू स्टैंड टू लूज, आपको कोई मिलेगा नहीं। प्लस 80 जो आपका चैप्टर 6A है उसमें एक्सेप्ट 80 JJAA एंड 80M, ये दो के अलावा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। तो दिस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन चूजिंग दिस डिडक्शन। अगर हमने चूज किया कि हमको नई स्कीम में जाना है, देन देयर आर 2 फॉर्म्स टू बी फाइल्ड। फरवरी में एक अमेंडमेंट आया था जहां पे रूल्स 22AE एंड 22AF इंट्रोड्यूस किए थे, and they have said that you have to fill these 2 forms before filing your ITR. तो मैंने अगर सपोज मुझे 115BAA में जाना है, स्कीम 1 में जाना है, तो मुझे फॉर्म 10IC फाइल करना है बिफोर माय ITR। एंड अगर मुझे उसमें स्कीम 2 में जाना है, नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो मुझे 115BAB एक फॉर्म फाइल करना है, वेयर आई हैव टू चूज एन ऑप्शन। ये फॉर्म मुझे फाइल करना है ITR फाइलिंग से पहले। So these 2 forms 10IC and 10IB now been introduced in the act. इसके अलावा आई थिंक देखेंगे तो यहाँ पे देखा गया है कि टोटल टर्नओवर मेरा अगर 400 करोड़ से कम है, मतलब बेसिकली मुझे एग्जिस्टिंग में जाना है कि 115BA में जाना है, ये मुझे ITR में स्टिक करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा ये ऑप्शन। 44AB का ऑप्शन मैंने बताया वो 1 करोड़ से 5 करोड़ का यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। द सेम ऑप्शन इज देयर हियर, वी हैव टू चूज। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज, आई थिंक व्हेन वी टॉक अबाउट ITR वेरिफिकेशन, हम नॉर्मली मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हैं, उनको हम बोलते हैं भाई आप साइन करो। बट बहुत टाइम क्या होता है कि CFO एंड पीपल हु आर इनटू फाइनेंस दे आर मोर वेल वर्स्ड विद दिस। सो अब एक ऑप्शन दिया है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, उन्होंने अमेंडमेंट किया है विद इफेक्ट फ्रॉम लास्ट ईयर। उन्होंने बोला कि फॉलोइंग की पर्संस कैन आल्सो वेरीफाई योर रिटर्न। तो की पर्संस कौन है उसको प्रिस्क्राइब करना बाकी है, बट अगर कोई फॉर एग्जांपल CFO किया या कोई आपको अकाउंट्स मैनेजर या आपको व्हाटएवर पोस्ट दे डेजिग्नेट, उनका आपको नेम, डेजिग्नेशन, रेसिडेंशियल एड्रेस, पैन/आधार या डिन नंबर अगर डायरेक्टर है तो वो आपको देना पड़ेगा। सो इवन दे कैन नाउ वेरीफाई द रिटर्न। तो ये लास्ट टेबल में जो लास्ट का था प्रिंसिपल ऑफिसर था, यहाँ उन्होंने नया ऐड कर दिया है, एंड डिटेल्स ऑफ द एलिजिबल पर्सन हु इज वेरीफाइंग द रिटर्न। तो एलिजिबल पर्सन जो अमेंडमेंट आया उसकी लिस्ट आनी बाकी है, बट आई एम श्योर CFO और जो पर्सन फाइनेंस से लिंक्ड है दे माइट बी इन्वॉल्वड इन दिस। नेक्स्ट इज अ वेरी माइनर चेंज, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर था 6164 था, 6162 कर दिया है। Debits to manufacturing, very minor change in this. This is a prescribed mode. I'll skip. It's very normal thing. ये 43B का जो amendment आया NBFC वाला वो यहाँ पे भी डाल दिया है. Now this is something relating to the transfer pricing, TPSA वाला भी schedule यहाँ डाल दिया है. Now property sell किया उसका percentage की जगह PAN/आधार डाल दिया. Now we have an option of giving an Aadhaar number also in this. Now coming to PGPP, same thing. I think as we have discussed, income from business profession यहाँ पे भी typo था which they have removed now. Now this is again a smaller part that 6R था उससे 6S कर दिया। They made all small changes here, not a major change here. Coming to the major ones now. Life insurance का अलग से schedule दे दिया जो मैंने बताया, ITR5 में same schedule is there in ITR6 also. Now life insurance business, then plant and machinery का 45 number का 45 is the separate rate of depreciation isn't mentioned here. Same, we'll quickly skip through it. Now co-owner का share जो दिया था that is also mentioned. I'll skip through it. We already discussed these things, कोई major changes में नहीं है. Now, okay, this is a very small change, but यहाँ पे जैसे 54 and 54F भी डाला था, they are applicable only for individual HUF, तो कंपनी में से वो था ही नहीं, तो उसको भी यहाँ से निकाल दिया है. Small changes here. 112A का अलग से टेबल दे दिया है. I think this we have discussed. Same table is there for the companies also. Non-residents के लिए भी दिया हुआ अलग से टेबल. This we have already discussed. Now any other income that is okay. Now we know that there are a few incomes. So आपको पता है फाइनेंस एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वहाँ पे लिखा है कि भाई कुछ इनकम फॉरेन कंपनी की टैक्सेबल 50% है. फॉर एग्जांपल रॉयल्टी रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और एन इंडियन कंसर्न इन रिस्पेक्ट टू अग्रीमेंट मेड विद इन सर्टेन डेट्स और फॉर सर्टेन कंडीशंस. ये जो कंडीशंस है इनकी रेट 50% में टैक्सेबल है. उसके लिए पहले डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट अलग से नहीं था, पर नाउ उन्होंने शेड्यूल OS के अंदर अलग से रिपोर्टिंग का डाल दिया. So you can see now here, I think वो आगे है, I'll show you. And second, there's a very special provision 115BBD कि अगर आपको कोई डोमेस्टिक कंपनी है उसका 26% से ज्यादा इक्विटी होल्डिंग है फॉरेन कंपनी के अंदर और उसको डिविडेंड मिलता है फॉरेन कंपनी से, दैट इज टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट ऑफ 15%. तो उसके लिए भी 115BBD के लिए भी सेपरेट रिपोर्टिंग नहीं था, तो इन दोनों के लिए इन्होंने सेपरेट रिपोर्टिंग कर दिया है. यू कैन सी हियर 115BBD यहाँ पे डाल दिया है एंड नीचे इवन रॉयल्टी के लिए 50% का एडिशनल. तो these two are the separate additional reporting requirements that were introduced this year in the ITR6. Now again this is small change. This is just a arrangement of change, no major change in this. Now cash credits, okay, this is all not a very major change. Depreciation हम डिस्कस कर चुके हैं. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का अलग से दिखाना है. ये आपने देखो PTI लॉस एंड टोटल हाउस प्रॉपर्टी लॉस और
शॉर्ट टर्म एवरीथिंग नॉर्मल एंड पीटीआई बोथ लॉसेस आर गिवन नाउ, सेम टेबल है जो पहले आई थी, नो मेजर चेंज इन दिस। जम्मू एंड कश्मीर के साथ जम्मू कश्मीर ने लद्दाख डाल दिया है, लद्दाख नाउ बीन एडेड। यहाँ पे आप देखोगे 80 LA जो IFSC यूनिट्स के लिए है, 80 PA जो प्रोड्यूसर कंपनीज के लिए है, वो दोनों यहाँ पे इन्होंने डाल दिए हैं। So this is all we have discussed. Even share of loss has been discussed now. This is regarding secondary adjustments, TPSO also we have discussed, same thing. Now details of income from outside India. So I think a lot of us has confusion that DTAA का benefit खाली Indian residents को ही मिलता है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि अगर कोई कंपनी है जहाँ पे उनको DTAA का बेनिफिट लेना है, तो इन दैट केस ओनली दे हैव टू मेंशन दैट ओनली अवेलेबल इन केस ऑफ अ रेसिडेंट, वो स्पेसिफिक कर दिया है। इवन आपको कोई टैक्स क्रेडिट का क्लेम का क्रेडिट बेनिफिट लेना है, इट्स आल्सो अवेलेबल ओनली फॉर रेसिडेंट्स। नो शेड्यूल SH1 लास्ट ईयर ये शेड्यूल आया था एंड लॉट ऑफ अस हैड ह्यूज लॉट ऑफ इम्प्लीकेशंस, हमको बहुत टाइम लगा ये समझने में, क्लाइंट को समझाने के लिए। दिस वाज द शेड्यूल जहां हमने क्या लिखा था, इफ यू आर एन अनलिस्टेड कंपनी तो आपको बहुत सारी डिटेल देनी पड़ती थी। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मेरे एंड ऑफ द ईयर कौन शेयर होल्डर है, उसका स्टेटस क्या है, पैन नंबर, डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये सब डिटेल मेरे को देना पड़ता लास्ट ईयर। सिमिलरली मुझे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, या मेरे शेयर होल्डर जो एंड ऑफ द ईयर में शेयर होल्डर नहीं है पर ड्यूरिंग द ईयर कभी भी रहे होंगे, उनका डिटेल मेरे को देना पड़ता था। बट दिस ईयर दे हैव एक्सटेंडेड, दे हैव बेसिकली एक्सक्लूडेड 2 कंपनीज, जो आपको सेक्शन 8 कंपनी है जो अर्सवाइल सेक्शन 25 है, एंड जो आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, इन 2 कंपनी को ये शेड्यूल फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट हमारे जो नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है उसमें हमको अभी भी ये शेड्यूल SH1 देना पड़ेगा। नाउ शेड्यूल DI सेम एज पर द लास्ट ईयर, नो चेंज, दैट्स द लास्ट अर्लियर आइडियाज। Ind AS compliant company, I think Ind AS के अंदर एक ऑप्शन था कि भी whether they have maintained books of accounts or not, but obviously Ind AS company will be maintaining, तो इसके लिए वो whether का ऑप्शन निकाल दिया है, they will always maintain books of accounts, you can see here. Now this is for the no change in 44A, is the same thing. Now there are certain things which have been removed. I will discuss the main things now, कि आपको I think ये deduction specific not a major thing, I will discuss the major things now. ये वाला 54 and 54F निकाल दिया because applicable ही नहीं है companies को। Now I don't know very strangely जो आपका provident fund का बैलेंस है टैक्सेबल 111 के अंदर, वो भी इसके अंदर आ रहा है, ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, तो वो भी आज एक बार फाइनली निकाल दिया। नाउ इवन योर डिविडेंड्स अंडर 115 ACA इज टैक्सेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, वो भी यहाँ पे डाला था, वो भी निकाल दिया, इट्स ओनली फॉर इंडिविजुअल्स जो 115 ACA है। नाउ अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, आई थिंक आपने नीचे देखा अदर इनकम इंक्लूडिंग एग्जम्प्ट इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। Every year I used to see कि यार ये कैसे ITR 6 के अंदर आ रहा है। ITR 6 can a company have an income from minor child? It cannot have. It was there, but this year luckily they have removed this के भी including income of exempt of minor child ये निकाल दिया अभी इस साल में, तो this is a change. Now schedules ITR 7, ITR 7 में ट्रस्ट में जो मेजर चेंजेस इन फाइनेंस एक्ट 2020 जहाँ उन्होंने बोला री रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। So now फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर क्या किया उन्होंने बोला कि सेक्शन 12A भी इंट्रोड्यूस किया, रिप्लेसिंग द अदर सेक्शंस, अर्लियर सेक्शंस, एंड उसको पहले 1 जून से इफेक्टिव किया था, बट बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड द अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस एंड दे इशूड अ प्रेस रिलीज जहां पे उनको 1 अक्टूबर कर दिया है। सो नाउ 1 अक्टूबर से हमको 3 महीने का टाइम मिला है कि 3 महीने के अंदर हमको ये कंप्लाई करना है। सो टिल 31st of December वी हैव अ टाइम टू कंप्लाई विद दिस री रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट। तो उसके लिए मुझे ये 4 कॉलम देने पड़ेंगे। सी आई विल बी फाइलिंग माय ITR बाय इन नवंबर एंड, ठीक है, नवंबर एंड तक मैं फाइल करूंगा, तब तक मुझे ये 4 डिटेल देनी पड़ेगी। whether application for registration is made as per the new provisions, whether section under which registration is applied, date on which application for registration as per the new provision is made, and relevant section। मतलब ये चारों चीज मेरे को देनी पड़ेगी। अगर मैंने I think it is very much possible that application मैंने नहीं भी किया हो because मेरे पास 31st December तक का टाइम है, in that case I have to keep this columns empty, otherwise I have to fill these columns। तो ये टेबल के लिए I think I'll show you a table. This is the last year table जहाँ हमको details of registration देना पड़ता था। Now they have added 4 new columns whether application has been made, as I discussed, section and the date। This is the same UDIN number डाल दिया है, nothing, no change in this। For the unlisted shares again type of the company add कर दिया। This is a recap of what we have done। A very important electoral trust, I think very few of us are doing it, but जिनके electoral trust है उनके लिए एक amendment ये लाया कि there is a provision that if you are getting any voluntary contribution during the year, then the amount that you can spend on admin and management functions is restricted only to 5% of that amount, or 5 lakhs for first year and 3 lakhs on the subsequent years। तो वो रिस्ट्रिक्शन उन्होंने यहाँ स्पेसिफाई कर दी है। आप देखोगे तो पहले रिस्ट्रिक्शन डाला नहीं था, यहाँ रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई कर दी है। There's a change for electoral trust। Rest I think pass through income loss same thing। I think as you all know corpus donation अभी this is disclosure, this is change now।
लास्ट तक क्या होता था कि मैं जो भी मेरे डिसअलाउंस होते हैं फंड्स में, I have to show on the bad debts, provisions and any other disallowed expenditure. 3 items है. But as per the provisions now, if the benefit of exemption of corporate donations, any contribution by a charitable religious trust to a trust registered at 12AA with a specific direction that it shall form part of the corpus is not considered as an application of income. मेरा कोई ट्रस्ट है, मैंने कोई दूसरे ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है उसको मैंने with a specific direction दिया कि I am giving you as a part of the corpus, that will not be considered as an application of income for me. तो उसके लिए सेपरेटली यहाँ पे डिस्क्लोजर डाल दिया है कि यहाँ पे पहले था बैड डेट्स प्रोविजन एनी अदर डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, यहाँ नेक्स्ट डाल दिया है बैड डेट्स प्रोविजन डोनेशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट फंड एंड एनी अदर डिसअलाउड. तो वो एप्लीकेशन में नहीं माना जाएगा, उसको डिसअलाउंस अलग से स्पेसिफाई कर दिया. रेस्ट आई थिंक ऑल शेड्यूल कैपिटल गेन मॉडिफाइड बिकॉज़ आईटीआर 7 के अंदर देयर स्पेसिफिक प्रोविजंस फॉर ट्रस्ट, तो उनको डाल दिए, पुराने प्रोविजन निकाल दिए. इट्स वेरी सिंपल थिंग. दिस इज एनी अदर इनकम एक्सपेंसेस चेंज करते हैं. दिस इज फॉर द पास थ्रू इनकम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस. पास थ्रू लॉस भी आपको मिलेगा इसके अंदर. नाउ डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट ओनली रेसिडेंट्स को मिलेगा, दैट इज देयर, वी हैव डिस्कस दिस. दिस और इवन फॉर द बैंक अकाउंट्स इज मेंशन कि आप मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ले सकते हो, सेम थिंग. रिफंड के लिए आप फॉरेन अकाउंट है तो फॉरेन बैंक अकाउंट दे सकते हैं अभी आप. सो दिस वाज मेनली फॉर द आईटीआर अमेंडमेंट्स. सो नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार इज द टैक्सेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस, the applicable package, ITR forms along with the major direct tax amendments for the assembly in 2021. And now we will spend some time on the important circulars and notifications. Friends, the most important one, Form 26AS. I think this is a thing that we all are so much accustomed, all are so accustomed to deal with. हमारे articles हैं, हमारा audit staff है, उन सबको पता है कि 26AS क्या होता है. 26AS is an annual tax statement containing details of various tax, TDS, TCS, सब उसके अंदर आता है. फाइनेंस जो आपको 2010-11 से ये 26 हम यूज कर रहे हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टूल फॉर ऑल ऑफ अस इन फाइलिंग आईटीआर. नाउ इन द फाइनेंस एक्ट 2020 बजट, the finance minister made a statement that we are replacing section 203AA with a new section 285BB. इन्होंने रिप्लेस कर दिया और आईटीआर नोटिफाई किए थे 29 मई को. उसके एक दिन पहले मतलब 28 मई को उन्होंने नया फॉर्म 26AS इंट्रोड्यूस कर दिया, नोटिफाई कर दिया, which is now called annual information statement. So पहले था annual tax statement, now it is annual information statement. So you can see even by the nomenclature they are now capturing much more details than what was earlier there in the tax statement. So this was the earlier, हम ये सब हम जानते हैं कि 26AS का जो पार्ट से पार्ट A deals with TDS, पार्ट B deals with TCS, पार्ट C आपका टैक्स पेड के ऊपर है, पार्ट D details of tax refund, पार्ट E on SFT. पार्ट E था वो AIR transactions का था जो बहुत restrictive था. We will see how it is. Part F deals with the अगर मैं कोई buyer, I am a buyer of real property, मेरा डिटेल वहां पे आता था. And Part G was dealing with TDS defaults. So very categorically it was mentioning only TDS defaults. वहां पे income tax default में खाली TDS था. This was the erstwhile Form 26AS. इसके अंदर जो मैंने बताया, this is how it looked like annual tax statement. Now this is Part E जो मैंने बताया AIR information. AIR के अंदर यहाँ Part 4 I think I don't know how many of us have actually seen this कि Part 4 के अंदर बहुत restrictive scope था, खाली 8 कॉलम्स मेंशन किए थे. अगर आपके 8 के अंदर आते हैं तो ही आपको वहां ऊपर मेंशन करना है AIR के अंदर. बट नाउ न्यू फॉर्म 26AS ने इंट्रोड्यूस, नया का नाम क्या है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूल 114I एंड नाम इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट. व्हाट डज इट कंटेन? इट कंटेन्स द फॉलोइंग 7 आइटम्स. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड एंड कलेक्टेड एट सोर्स. सो वी ऑल नो TDS, TCS एज इट इज वो आ जाएगा, नॉर्मल थिंग. सेकंड, information relating to SFT, specified financial transaction. Now this SFT is not the earlier one. This SFT is under section 285BA. हमने section 285BA के अंदर जो भी SFT का transaction का list है, वो entire list will now be covered here. I'll give you a simple example. मैं एक शेयर होल्डर हूँ कंपनी में, मैंने 10 लाख से ज्यादा के शेयर परचेस किए हैं, तो कंपनी एक रिपोर्टिंग करती है फॉर्म 61A के अंदर, वो बोलती है कि हरित धारीवाल ने 11 लाख के शेयर परचेस किए. वो इन्फॉर्मेशन मैं पहले 26AS के अंदर नहीं आता था. नाउ सिंस दे हैव लिंक्ड इट टू एसएफटी, अब मेरे 26AS के अंदर आएगा कि हरित धारीवाल ने 11 लाख के शेयर XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के परचेस किए हैं. सो नाउ दैट एसएफटी का डिस्क्लोजर इज सो वाइड, एवरीथिंग विल फॉल अंडर दिस. सिमिलरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस. नाउ पॉइंट नंबर 4, इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू डिमांड एंड रिफंड. मतलब मेरा कोई डिमांड या रिफंड इनकम टैक्स में है, उसका भी डिटेल यहाँ पे आएगा. 5 इज इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पेंडिंग प्रोसीडिंग्स. नाउ and 6 is complete. So 5 and 6
पेंडिंग प्रोसीडिंग्स एंड कंप्लीटिंग प्रोसीडिंग्स. नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक. वो लोग रेट्रोस्पेक्टिव जाएंगे कि नया करेंगे, बहुत डिफिकल्ट है. बट यहाँ मेरी सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग आ जाएगी. मेरे सपोज इनकम टैक्स में कोई अपील चल रही है, आईटीडी में केस है, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है, या मेरा कोई 143 का असेसमेंट चल रहा है, पेंडिंग है, एवरीथिंग विल कम हियर. मेरा कोई असेसमेंट हो चुका है तो कंप्यूटर के अंदर आएगा. नाउ आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज इट, पर ये ऐसा बोल रहे हैं कि सब कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले. नाउ द मोस्ट ड्रैकोनियन इज पॉइंट नंबर 7, जो बोलते हैं any other information in relation to subrule 2 of 114I. Now if we read the subrule 2 of 114I says the board may also authorize the principal DG systems or the director general of income tax or any other person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function under any law, or the information received under an agreement referred to in 1990A. The most difficult, the most problematic is or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of revenue in the AIS. मतलब अगर कल उठ के मुझे कुछ भी लगता है कि रेवेन्यू के इंटरेस्ट के लिए कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, I can make it a part of point number 7. So for example, right now, if the assessing officers feel, if the PG, this DG feels, DG system feels कि भाई मुझे ज्वेलरी का इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने लोगों ने 20 से 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी परचेज करी, तो वो डिटेल भी अब यहाँ पे आने चालू हो जाएगी अगर वो चाहते हैं तो. इट इज बेसिकली दे जस्ट से कि इट्स अ वेरी वाइड पावर दैट दे हैव बीन गिवन. वो आप कुछ भी चाहे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू करके यहाँ डाल सकते हैं. सो नाउ वी कैन सी द फॉर्म एंड स्कोप ऑफ फॉर्म 26 हैज बीन इंक्रीज मल्टीफोल्ड. बहुत ज्यादा स्कोप इसका बढ़ा दिया है. तो जैसे पता है एआईआर वर्सेस एसएफटी रिपोर्टिंग आप देखोगे, एसएफटी बहुत ही डिटेल में है एंड वो सब कुछ अभी इसके अंदर 26 डेज के अंदर आने वाला है. नाउ कमिंग टू प्रेस रिलीज, ये 26 डेज क्लियर हुआ. नाउ कमिंग टू प्रेस रिलीज, हमने बोला कि ये टीडीएस के रेट्स कम हो गए हैं, वो प्रेस रिलीज अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है. अगर आपका कोई भी पेमेंट या आपका कोई भी क्रेडिट फ्रॉम 14 मई टिल 31 ऑफ मार्च होता है तो आपके 25% टीडीएस रेट्स कम हो गए हैं. और आई थिंक ये पूरी लिस्ट अपने सबके पास में, आई थिंक दिस इज देयर. इवन फॉर टीसीएस द रेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड. नाउ टीसीएस में आई विल कम टू अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑन 2061H 2061H. इट टॉक्स अबाउट सेल ऑफ एनी अदर गुड्स. हमको पता है फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर अमेंडमेंट आया था जो अभी इन्होंने डिफर कर दिया टिल 1 अक्टूबर. पर अगर मेरा टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर है और मैंने कोई गुड सेल किए हैं किसी को और मेरा रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है तो मुझे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करना है. इट इज अ वेरी वेरी काइंड ऑफ कंप्लायंस ओरिएंटेड, बहुत ही ज्यादा कंप्लायंस बढ़ा देगा. उसका भी इन्होंने टीसीएस रेट कम किया है. इट इज नॉट 0.75, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है गवर्नमेंट के प्रेस रिलीज में. इट इज 0.075, बट दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन टू बी टेकन केयर ऑफ. अगर वो 1 अक्टूबर को डिफर नहीं करते हैं then from 1 October to make our clients aware कि आपको TCS और रिसिप्ट कलेक्ट करना पड़ेगा. एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका पान आधार नहीं है तो 15 नहीं होगा, 20% ही आपका चार्ज करेंगे. नाउ कमिंग टू 10DA section 80 JJAA. I think wherever I have taken this lecture or earlier lectures also, this is one section which we as professionals fail to capitalize. बहुत अच्छा प्रोविजन है जो हम क्लाइंट्स को एडवाइस कर सकते हैं. 80 JJAA is for a new employment. Now I'll give you a simple example. ये सेक्शन 4-5 साल पहले क्या था और अभी क्या है. पहले था it is applicable only for factories, only for manufacturing units, only for units having more than 100 employees. अलग से लिमिट थी, so it was not good for everyone to take this benefit. लास्ट 2-3 साल से इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, बहुत ही फ्रेंडली बना दिया मुझे. नाउ इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी टैक्स पेयर व्हिच इज अंडर टैक्स ऑडिट. तो एनी एसएससी जिस इज अंडर टैक्स, अगर ट्रेडर भी है उसको भी मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले को भी मिलेगा, प्रोवाइडेड इज अंडर टैक्स ऑडिट. उसमें 4 कंडीशंस है. फर्स्ट इज आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होना चाहिए लास्ट ईयर से ज्यादा. तो इन दैट केस फॉर एग्जांपल, आई गिव यू एन एग्जांपल. अगर मैंने मार्च 2019 में 20 एम्प्लॉइज है, मार्च 2020 के अंदर 30 एम्प्लॉइज है, so I've increased 10 employees. जो 10 employees जो एक्स्ट्रा बड़े हैं उनके साल का पूरा सैलरी का पैकेज का 30% मुझे एक्स्ट्रा रिडक्शन अंडर 80 JJAA मिलता है. अब उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशंस ये है that all the increase है, जो 10 मेरे एम्प्लॉइज इंक्रीज हुए हैं वो सारे मेरे 240 दिन से ज्यादा काम करने चाहिए, मतलब वो 1 अगस्त से पहले एम्प्लॉय हो जाने चाहिए. सेकंड, मेरे जो एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी 25,000 से कम होनी चाहिए पर मंथ. थर्ड, एम्प्लॉइज को जो सैलरी पे कर रहा हूँ इट विल बी ओनली इन मोड्स अदर देन कैश, ECS, ऑनलाइन ट्रांसफर, पर कैश नहीं होना चाहिए. एंड फोर्थ इज द एम्प्लॉय शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर PF, प्रोविडेंट फंड में वो लोग रजिस्टर होने चाहिए.
अगर मैं ये कंडीशंस फुलफिल करता हूँ, then it's a very good deduction that you can get 30% of their entire salary package for the year we get as deduction, not for 1 year, for 3 years. तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस साल में डिडक्शन लिया, मुझे वो सेम अमाउंट 2 साल और मिलेगा, नेक्स्ट ईयर और इंक्रीज किया है तो क्यूमुलेटिवली बढ़ता जाएगा. तो दिस डिडक्शन वाज अ वेरी वेलकम डिडक्शन. नाउ इसमें अमेंडमेंट क्या लेके आया है फाइनेंस एक्ट 19 के अंदर, कि सपोज मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैंने बोला 240 डेज से ज्यादा काम करता तो ही मिलेगा. अब मैंने कोई एम्प्लॉय दिसंबर में एम्प्लॉय किया, जो उस साल में तो खाली 3 महीने ही काम किया, 3 या 4 महीने, बट नेक्स्ट ईयर वो पूरे साल काम किया, तो वो जो फर्स्ट ईयर रह गया लेना, वो उसको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि वो पूरे साल काम किया है, he can now come under the calculation for it, this benefit of this section. तो उसके लिए इन्होंने कॉलम क्या डाली है. ये ओल्ड फॉर्म 10DA था, वो बहुत सिंपल था, वो सीए सर्टिफिकेट हम दे रहे 10DA के अंदर, इट वाज सीए ऑडिट 10DA. नाउ इन द न्यू फॉर्म उन्होंने क्या किया है, रिपोर्ट अंडर 80 के अंदर इन्होंने ऐड किया कि एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब मेरे करंट ईयर में अगस्त के पहले जो हुए हैं, या एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, एक साल पहले के जो एम्प्लॉयज है जो उस टाइम पे क्वालिफाई नहीं कर पाए पर अभी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो नाउ सेपरेट कॉलम हैज बीन गिवन इन 10DA. so this is how our working will change this year, पर हमको उसको accordingly हम disclose कर सकते हैं. This entire section, I think we already discussed this section. I'll go ahead now. Now coming to another very very important section on 269 SU. I think ये बहुत ही important section है जो अभी applicable हो गया, बहुत लोगों ने इसका compliance नहीं किया है. So as we know, this section talks about every person carrying on business. Now it is only for business. यहाँ पे profession word use नहीं किया है. So businessman का कोई भी any person who is carrying on business shall provide facility for accepting payment through electronic prescribed modes in addition to the facility of other electronic modes, if any, being provided by such person if his total sales exceed 50 crores. मतलब मेरा 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो मुझे मेरे जो सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, जिनसे मुझे पैसा आना है, I have to give them 3 additional electronic modes to those additional to my customers in addition to the modes that I already have. वो 3 मोड्स क्या है, वो नोटिफाई उन्होंने नवंबर में किए थे. आई शो यू द मोड्स. तो सॉरी दिसंबर में किए थे, 30 दिसंबर को उन्होंने नोटिफिकेशन लाया था. मैं बोला कि अगर 269 SU के अंदर 3 मोड्स प्रिस्क्राइब, डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूपीआई भीम एंड यूपीआई क्यूआर कोड. तो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ. मेरा एक कस्टमर है, मेरे एक क्लाइंट है जिनका 60 करोड़ का टर्नओवर है. उसका उसके मल्टीपल कस्टमर्स है, कोई B2B है, कोई B2C है, तो उनको इररिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर्स उनको 3 मोड देने पड़ेंगे, रुपे, यूपीआई भीम एंड यूपीआई क्यूआर कोड. नाउ द क्वेश्चन केम कि मुझे अगर ये 3 मोड देने हैं, तो व्हाट अबाउट द मोड्स, व्हाट अबाउट कि मेरे सब B2B है और पूरा पैसा मेरा ECS से आता है. तो उसके लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए एंड फाइनली दे केम अप विद द क्लैरिफिकेशन ऑन 20th of May, जहां बोला कि अगर आपको पूरा B2B ट्रांजैक्शंस है, कोई भी कैश में 95% आपका अमाउंट कैश के बिना आता है, in that case you are not required to comply with 269 SU. तो अमेंडमेंट लेके आ गए थे. Now this is a way to comply. जिन्होंने जिनके कंप्लाई नहीं किए हैं, आई थिंक यू हैव टू कंप्लाई नाउ, बिकॉज इसके लिए हमको ईमेल भी इनकम टैक्स से आ रहे हैं दैट यू हैव टू मेंशन द प्रिस्क्राइब पेमेंट मोड्स. आपने कहां का कंप्लाई, दिस इज अ टेबल. तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन देना पड़ेगा, नेचर ऑफ बिजनेस, वेदर यू हैव मेड द फैसिलिटी अवेलेबल. इफ यू पुट अ यस, देन ये तीनों खुल जाएंगे और तीनों का डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन डालना कंपलसरी है. तो इसमें क्यों कंपलसरी का इशू आएगा, बिकॉज इफ यू कैन सी हियर फेलियर टू प्रोवाइड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट shall invoke penalty of 5,000 from 1st February. अगर मैं यहाँ डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन लेट से आज का डालता हूँ, तो डिपार्टमेंट कैन लेवी अ पेनल्टी ऑफ 5,000 पर डे टिल टुडे. कि आपने ये क्यों नहीं किया, बिकॉज इन्होंने दिसंबर में नोटिफाई किया, इन्होंने पूरा जनवरी मंथ दिया कि भाई फुल जनवरी मंथ यू कैन इंप्लीमेंट इट फ्रॉम 1st जनवरी टू 31st of January एंड फ्रॉम 1st of February ऑनवर्ड्स हम ये पेनल्टी आपको लगाएंगे. तो जिन्होंने अभी भी इसको नहीं कंप्लाई किया है, दे कैन स्टिल कंप्लाई एंड दे कैन डू द कंप्लायंस ऑन द ऑनलाइन पोर्टल. Now coming to this is a recent one. 13 जुलाई को एक अमेंडमेंट आया था जहां पे उन्होंने सर्कुलर एक a one time relaxation was given. I think lot of our clients and I think lot of clients are facing this issue कि जिनका assessment year 1920 का ITR टाइमली बेंगलुरु नहीं पहुंचा है कोई भी कारण से, तो उन लोगों को बोला है कि भाई आप ये असेसमेंट ईयर्स के जो भी आपके बाकी है 15-16 से लेके 19-20 तक, उनका आपका ITR V जो है उसको आप साइन करके फिजिकल कभी बेंगलुरु भेज सकते हैं टिल 30 सितंबर. तो उसको हम प्रोसेस कर देंगे एंड दैट प्रोसेस रिटर्न्स विल बी प्रोसेस्ड. दे हैव आल्सो रिलैक्स द टाइम फ्रेम फॉर इशूइंग नोटिफिकेशन द इंटीमेशन. जो आपका इंटीमेशन इन केसेस में है उसको टाइम फ्रेम प्रोसेस एक्सटेंड करके 31st दिसंबर तक कर दिया है. सो टिल दैट टाइम यू कैन एक्चुअली दे विल गेट द इंटीमेशन फॉर दैट ऑन दैट अमाउंट.
Now with this, I think major all the amendments have been done. Even the notifications have been covered. Now a few checklists that I wanted to share. तो हम लोग की for example अभी हमारे पास time है, so we can prepare a checklist which we also at our office do कि भाई हम लोग एक checklist बनाए, clients को checklist advance में भेजें कि भाई ये हमको documents है, हमको details चाहिए. If there is any shortfall, then clients को inform करें. We have to acknowledge the received documents and segregate it. So क्या होगा? I think now this time we'll be getting a lot of data online, some data physical. We have to segregate कि कौन सा data आया, कौन सा data नहीं आया. And after a primary check, now very simple thing. आपको बताऊं जैसे सेक्शन 44 AD उसके अंदर सब सेक्शन 4 है जो बोलता है कि भाई सपोज फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल लैंग्वेज आई विल से कि लास्ट से मैंने 44 AD की ऑडिट करी है, 44 AB में किया है, उसके पहले AD किया है, लास्ट से मैंने ABB के अंदर किया है, दिस ईयर आई कैन नॉट गो बैक टू 44 AD. वो जो बोलते हैं ना 5 साल तक हम नहीं जा सकते, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? अगर हमारा आर्टिकल है वो देखेगा भी टर्नओवर तो 2 करोड़ से कम है, मैं एडी में कर लेता हूँ, पर उसको लास्ट से ये कंडीशंस भी देखने पड़ेंगे, तो वो हम अभी चेक कर सकते हैं क्लाइंट टू क्लाइंट कि वेदर इट्स एप्लीकेबल और नॉट. डीएससी हमको रिन्यू करना है, रिव्यू है कि नहीं, दैट वी कैन चेक. तो ये सारी डिटेल्स जो फॉरेन एसेट्स की, स्पेशली जो क्लाइंट्स जिनके फॉरेन क्लाइंट्स है या फॉरेन नॉन रेसिडेंट्स है, उन लोगों को फॉरेन एसेट्स की सारी डिटेल मंगाने में बहुत टाइम जाता है बिकॉज उनको वहां से मंगानी पड़ती है. So that again we can prepare a checklist and send it to them. We can see last year statement of total income, बहुत कुछ वहां से मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल क्लबिंग ऑफ इनकम है, तो क्लबिंग के लिए मुझे अभी से बोलना पड़ेगा भाई आप स्पाउस से मैनेजर की डिटेल्स मेरे को दे दो. So all these are the proactive things that we can do and we can start doing it. For example set of losses है, या फॉर एग्जांपल नॉन रेसिडेंट है तो उसने फॉर्म 15 CACB फाइल किया है कि नहीं. So all these things we can sit down, send a details to the client. Obviously we also give a letter to the clients कि ये pending items है. Now with this I think I could also say that filing of ITR is a responsibility of the SSC. वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है. आई थिंक बहुत सारे सीएस को मिसकंसेप्शन है कि यार हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, हम वो लोग साइन करके बैंक वाले बोलते हैं भाई हम साइन भी करते हैं भी हमने फाइल किया है. इट इज ऑल रॉन्ग. इट इज एसएससी रिस्पांसिबिलिटी. तो वी शुड ऑलवेज टेक अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कि वी आर डूइंग इट ऑन योर बिहाफ, कंडर अथॉरिटी लेटर कि भाई आपको आपकी रिस्पांसिबिलिटी, हम तो खाली आपको असिस्ट कर रहे हैं फाइल करने के लिए. डॉक्यूमेंटेशन आई थिंक हमारे एज अ सीए वी हैव अ वंडरफुल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जहां पे डॉक्यूमेंटेशन दिया है, तो जहां जहां जितना एप्लीकेबल होता है एज एन एमएसएमई मिड साइज फर्म वी कैन ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल दोस थिंग्स इन अवर फर्म आल्सो. नाउ आई थिंक ये सब उसके अंदर दिया हुआ है, टैक्स रजिस्टर, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग इज देयर. नाउ आई जस्ट स्पेंड सम टाइम ऑन द कंक्लूडिंग नोट. सो आई थिंक आपने देखा होगा कि आईटीआर सबको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल है, इजी है. आई थिंक बट अंकित जी और अमित जी ने जब मुझे बुलाया, आई थिंक नाउ आई एम श्योर कि नाउ आपको गोइंग फॉरवर्ड लग रहा होगा कि नहीं इतना इजी भी नहीं है जितना इजी गवर्नमेंट बोलती है, बिकॉज लॉट ऑफ डिटेल्स हैव बीन आस्क्ड. इट इज नॉट एज इट इज एंड लॉट ऑफ टाइम विल टेक फॉर अस टू कंपाइल इट आल्सो. So concluding से पहले I just say a few words that I was very inspired by this Narendra Modi's article. Honorable Prime Minister mentioned on LinkedIn that today the world is in pursuit of new business models. India, a useful nation known for its innovative zeal, can take the lead in providing a new work culture. I envision this new business and the work culture being redefined on the following vowels, and I call them vowels of the new normal. उन्होंने बोला अभी हमने नए vowels of new normal है, because like these vowels in English language, these would become essential ingredients of any business model in the post-COVID world, and this pandemic is sure to rewrite the rules of business. Now अगर आप देखोगे ये vowels हमारे लिए भी applicable है. So A stands for adaptability. As a professional now it is time for us to adopt. हम ये नहीं बोल सकते कि हमको hard copy ही चाहिए, ट्रायल बैलेंस हार्ड कॉपी चाहिए, हमको डेटा हार्ड कॉपी चाहिए. वी हैव टू अडॉप्ट नाउ. अगर वो हमारे क्लाउड में डालता है, हमारे सर्वर में डालता है, या हमको पेन ड्राइव में भेजता है, ईमेल करता है, वी हैव टू अडॉप्ट आवरसेल्व्स नाउ. इट्स टाइम फॉर अडॉप्टिंग. सेकंड इज एफिशिएंसी. एज अ प्रोफेशनल अगेन वी हैव टू लुक फॉर एफिशिएंसी कि हम कैसे हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, रादर देन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट. हम बोलते हैं यार हम रात को 3-3 4-4 बजे तक हम ऑफिस में काम करते हैं, एंड वी ऑल डू इट, वी आर ऑन द सेम बोट, बट वी शुड नाउ इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें. एंड स्पेशली टू आवर आर्टिकल्स, हमारे ऑफिस में तो रूल ये है व्हेन यू आर डूइंग योर वर्क, no WhatsApp, no Facebook, nothing, because that is a big diversion for all the articles and stuff also. Inclusivity, I think is very well mentioned for the care of poor, nature and health solutions. Opportunity, I think it's a wonderful opportunity for us. Now as we say that that as a chartered accountants now we can reach our clients, we can reach different boundaries. हम अलग-अलग जगह पे जाके हम presentation कर सकते हैं, हम मिल सकते हैं, हमारे prospects को हम मिल सकते हैं. So this opportunity we have to take into account now. And this last is universalism. I think he has said that the idea should find global relevance and application. So this जो new vowels से business model I totally agree with that. And in short, I think we have to now become a modern crow. I think हम सब old crow को हम जानते हैं वो story को, जहाँ पे वो बहुत perseverance करके he was working hard and everything. Now it's time to become a modern crow. We have to act smart. We have to update ourselves daily
so that we can also create a new story rather than the last year जो हम करते थे वो नहीं करना है. थोड़ा हमको we have to start acting fast. So with this, I think this is the table which will sum everything up. This is the client and us. I think filing of income tax return is a task that requires considerable skill to do well in maintaining the right balance between objective analysis, subjective judgment, and judicious reporting. So we have to make a balance of all this stuff, and then we have to file the ITR. And wish you all the best for filing. And with this, I think if you have any questions, I'll be ready to do those questions. थैंक यू हरीश जी. यदि किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा सर आपको. या आप चैट पर भी मार्क कर सकते हैं यदि कुछ क्वेश्चंस. आप कैसे कर रहे हो? आप कैसे कर रहे हो? हाँ हेलो जी सर बताइए. मेरे को वो 1 करोड़ से जो 5 करोड़ का किया है ना, उसको विथ रेफरेंस टू 44 AD थोड़ा सा बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि अगर मान लो 3 करोड़ आता है ना, 1 से 5 के उसमें अगर 3 करोड़ आता है जो आपने एग्जांपल दिया, तो उसके केस में 44 AD की कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ेगी या फिर ऑडिट तो करना ही पड़ेगा? सर 44 AD में 2 करोड़ की लिमिट है, तो 2 करोड़ तक ही आप 44 AD में जा सकते हो. अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 44 AD आपको अप्लाई नहीं होता. तो मैंने आपको 3 करोड़ का एग्जांपल इसलिए दिया कि 3 करोड़ का मेरा टर्नओवर है, तो पहले तो मैं कंपल्सरी ऑडिट कराता था 44 AB के अंदर. अभी अगर मेरे को कंडीशन फुलफिल होती है तो मुझे ऑडिट भी नहीं करानी, और 44 AD के अंदर तो वैसे भी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ नहीं करवाना है. हाँ, एक बात ये हो गया. अब यही बात अगर 1.5 करोड़ हो, हाँ, मतलब अपन 1 से 2 के बीच की बात करते हैं, हाँ, तो क्या 44 AD भी आएगा उसमें? यस, तब 44 AD आएगा, तब 44 AD आएगा, तब 44 AD एकदम आएगा. पर आपको सर ये देखना है कि अगर आपका सपोज आपका टर्नओवर 1 से 1.5 के बीच में है, तो आपको 44 AD का कंप्लायंस करना है. पर साथ में आपको ये है कि अगर 44 AD के आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हो फॉर एग्जांपल, तो आपको वैसे भी ऑडिट करने की जरूरत नहीं है. नहीं, ज्यादा प्रॉफिट वाली तो प्रॉब्लम ही नहीं, कम दिखाते हो है और हाँ. कम दिखाते हो सर, कम दिखाते हो तो भी आप एक्सेप्शन में फॉलो करते हो ना. कम दिखाते हो तो भी सर ऑडिट करने की जरूरत नहीं है आपको, बिकॉज नहीं कम दिखाएंगे और 44 AD में नहीं जाना है तो ऑडिट कराना ही है ना. पर सर आपको वो एक्सेप्शन है ना, अगर आप कम दिखाते हो. हाँ, कम बताते हैं और एक्सेप्शन में ये है कि हम उसमें एक्सेप्शन में आ गए कि हमारा ऑडिट नहीं कराना है. हाँ. लेकिन मैं 44 AD के हिसाब से मैं वो 8% नहीं बताता हूँ या 6% नहीं बताता हूँ, तो उस केस में क्या पोजीशन मिलती है? उस केस में करवाना पड़ेगा, बिकॉज 44 AB E के अंदर वो आता है. उस केस में आपको ऑडिट कराना पड़ेगा. उसमें कराना पड़ेगा. सर उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन मैं भी पूछता हूँ सर. अगर आपका सपोज फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, आपका बिजनेस का पहला साल है और आपका टर्नओवर लेट्स से 1.5 करोड़ है, ठीक है? हाँ. या मैं 1.5 में कह रहा हूँ, चलो 80 लाख का बिजनेस है, आपका टर्नओवर है, तो 80 लाख का 6% होता है आपका 4,80,000. हाँ. अगर आप 4,80,000 से कम प्रॉफिट दिखाते हो तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा सर फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस में? नहीं करना पड़ेगा. नहीं कराना पड़ेगा, कैसे? फर्स्ट ईयर के लिए कंडीशन एक निकली भाई, लास्ट ईयर की उसका टर्नओवर देखना पड़ेगा ना. मेरा फर्स्ट ईयर है, मेरा फर्स्ट ईयर है. हाँ, मेरा फर्स्ट ईयर में ये एप्लीकेबल होता है पिछले साल के टर्नओवर के बेस पे. फर्स्ट ईयर में कैसे होगा? नहीं तो फर्स्ट ईयर सर, फर्स्ट ईयर मेरा 80 लाख का टर्नओवर है, तो मुझे 6% दिखाना कंपलसरी है कि कम दिखाऊं तो चलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ. नहीं, वो तो बताना ही पड़ेगा ना, वो तो बताना पड़ेगा, 100% बताना पड़ेगा. अगर नहीं बताओगे तो ऑडिट कराना पड़ेगा. सबका यही ओपिनियन है कि एनीबॉडी हैज अ डिफरेंट ओपिनियन? नहीं, ऑडिट कराना ही पड़ेगा, अदरवाइज अगर नहीं कराएगा तो. क्योंकि ऑडिट की लिमिट बढ़ाना अलग बात है, लेकिन अगर वो 44 AD के हिसाब से टर्नओवर नहीं बताता है, मतलब प्रॉफिट नहीं बताता है, तो ही हैज टू गो फॉर ऑडिट, क्योंकि उसकी एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा उसकी प्रॉफिट है, 2.5 लाख से ऊपर है. Now, anybody having a different opinion? नहीं, उसको फर्स्ट ईयर में नहीं कराना पड़ेगा. हाँ, क्यों सर? एक सेकंड में थोड़ा सा फ्लिप हो रहा हूँ, एक मिनट मेमोराइज कर रहा हूँ. सर मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ सर. फर्स्ट ईयर के अंदर आप जो बोल रहे हैं ना सर, आपका आंसर सही था फाइनेंस एक्ट 2016 के पहले. फाइनेंस एक्ट 16 आप जो बोल रहे हैं कि मेरा सपोज फर्स्ट ईयर है, 80 लाख का टर्नओवर है और मेरे को 6% से कम दिखाता हूँ, तो मुझे कंपलसरी ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है? वो आप फाइनेंस एक्ट सर बराबर, ये फाइनेंस एक्ट 2016 के पहले का प्रोविजन था.
फाइनेंस एक्ट 16 के बाद में 44AB और 44AD में अमेंडमेंट आ गया है। अमेंडमेंट ये आया है कि 44AD के अंदर पहले क्या था, सबसेक्शन 1 का रेफरेंस था ऑडिट के लिए, जो बोलता है कि भी 6% से कम है कि ज्यादा है वो बोलता है, तो ऑडिट करना कंपलसरी है। उसमें उन्होंने सबसेक्शन 4 का रेफरेंस दे दिया ऑडिट के लिए। सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि अगर आपका लास्ट ईयर 44AD था, इस साल आप AB कर रहे हो, इस साल आप कंपलसरी ऑडिट करवा रहे हो, तो अगले 5 साल तक आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो इसका रेफरेंस दिया है। तो फर्स्ट ईयर में अगर आप वो सेक्शन अच्छे से वापस, मैं आपको मैं शेयर द एग्जैक्ट आर्टिकल आल्सो, अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो फर्स्ट ईयर में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू ऑडिट अगर आपका 6% से कम दिखा रहे हो तो, बिकॉज फर्स्ट, क्योंकि वो सेक्शन फाइनेंस एक्ट 16 की वर्डिंग्स, आप सर फाइनेंस एक्ट 15 का सेक्शन 44AB और 44AD और फाइनेंस एक्ट 16 का पढ़ेंगे तो यू कैन एक्चुअली फाइंड द डिफरेंस। 44AB के अंदर भी पहले था 44AD का सबसेक्शन 1 का रेफरेंस, वो वर्ड निकाल के अभी सबसेक्शन 5 का रेफरेंस डाल दिया। तो हम लोग करवा रहे हैं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी कर रहे हैं, हम भी सब जने कर रहे होंगे ऑडिट शायद, कि भाई चलो फर्स्ट ईयर है कम में करवा लो। उसका इश्यू क्या आ सकता है कि अगर सपोज लॉस कैरी फॉरवर्ड है, लॉस नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता है इन केस तो, या सेकंड मेरा जो लेट फाइलिंग फीस जो मेरी पेनल्टी लगती है वो मैंने सितंबर ले ली, जुलाई होनी चाहिए थी, तो ये सब इम्प्लीकेशंस है। और वेरी फाइन लाइन, इवन आई थिंक डिपार्टमेंट को भी शायद एक क्लिक हुआ कि नहीं पता नहीं, बट एज ऑफ नाउ अगर आप फाइन रीडिंग करेंगे वो सेक्शन का, देन फर्स्ट ईयर में अगर आप 6% से कम दिखा रहे हो और आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से कम है, देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डू ऑडिट। सर आपको वो सेक्शन, मैं आपको ऐसा होगा तो आपको वर्ड फाइल्स भेज दूंगा जो मैंने बनाई है, उसमें यू विल गेट टू नो कि भाई किस मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। ये क्योंकि सर मेजॉरिटी लोगों को ये वो रहता है कंफ्यूजन जैसा, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क दैट। यस सर, एनी अदर क्वेश्चन दैट वी हैव वी कैन डिस्कस। सर कितने लोगों ने आईटीआर, कितने लोगों ने काम चालू किया सर इसके ऊपर आईटीआर में ऑफिस में, दैट इज आई वांट टू आस्क। आईटीआर चालू 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 कर दिया सर? बिल्कुल सर। हाँ, आईटीआर 4 तो अभी फाइल नहीं हुआ है। 4 तो सर 4 हो रहे हैं फाइल सर, 4 और 1 दोनों हो रहे हैं। हाँ 1 तो हो रहे हैं, सही बात है सर, 4 भी फाइल हो रहे हैं सर। हाँ, एक इशू मेरा था सर, ये सर टीडीएस के जो रिटर्न्स में, ये अदरवाइज पूछ रहा हूँ, टीडीएस के जो अभी रिटर्न फाइल करना है सेकंड क्वार्टर के और थर्ड क्वार्टर का, जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि उसकी डेट भी 31 मार्च 21 हो गई है, तो ये एग्जैक्ट नहीं सर, ये आपको बताऊं मैं, ये जो आप ये है जो टैक्सेशन एंड अदर लॉस का 24 जून का जो ये आया है ना, 24 जून का जो ये आया नोटिफिकेशन, इसके अंदर उन्होंने सिर्फ रेफरेंस दिया है 206C का और 200 का, मतलब आपका जो टीडीएस रिटर्न्स जो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च का था आपका, उसी का उन्होंने 31 जुलाई किया है। अब जो आपका फर्स्ट क्वार्टर का जो है, जून क्वार्टर जो अभी खत्म हुआ, उसका अभी भी 31 जुलाई है। 31 जुलाई। हाँ, तो हमारे 31 जुलाई को 2 आने वाले, लास्ट ईयर का मार्च का भी है और ये जुलाई का भी है। वो बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये क्वार्टर भी करना है। सर मैंने एक्चुअली क्या, अभी मैं कहीं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, उसमें क्या था, उसमें लिखा कि 8 एक्सेप्शन दिए हैं उन्होंने केवल, कि उन्हीं के लिए डेट 31 जुलाई है, अदरवाइज सभी डेट एक्सटेंड होकर 31 मार्च 2021 हो गई है। नहीं, कौन से क्वार्टर की सर? 8 एक्सेप्शन में ये मतलब टीडीएस के वाला रिटर्न नहीं आता, बाकी सभी आ रहे हैं। जैसे आपको दूसरी जो कंप्लायंस है 31 मार्च के टीडीएस के रिटर्न की डेट है, या जो लास्ट ईयर के रिटर्न की डेट है 18 इन सब की जो उन्होंने 8 एक्सेप्शन दिए कि उनके लिए 31 जुलाई है, बाकी के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया है। तो एक्चुअली लग रहा है सर, टीडीएस के लिए सिर्फ एक्सटेंशन क्वार्टर 4 का 31 जुलाई तक का आया है, उसके अलावा कोई एक्सटेंशन नहीं है। लास्ट ईयर का भी सेम है, इस साल का भी जो भी भरना है मैंने बताया वो भरना है। सर एक इशू और मैं आपको बताऊं, अभी जो हमने इनफैक्ट आज ही मैं अभी गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी मेंबर हूं डायरेक्टर, हमने रिप्रेजेंटेशन किया है, आपको वहाँ इशू हो रहा है कि नहीं, पर कोई प्रोफेशनल है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है या कोई सीए जो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, उनके लिए सर मार्च में उनका कोई एक्सपेंस उनको हुआ होगा बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, उन्होंने 22 मार्च से लेके 31 मार्च तक कुछ पेमेंट वो कर नहीं पाए होंगे, तो उन्होंने वो सारे पेमेंट जून में या मई में किए होंगे। तो सर आपके भी इशू ऐसे आए होंगे, तो उन लोगों को डिडक्शन तो मार्च में मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो उनकी बैलेंस शीट्स कितनी लॉपसाइडेड हो जाएगी। लास्ट ईयर में खर्चे कम दिखेंगे, इस साल में खर्चे ज्यादा दिखेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट पूरा चेंज हो जाएगा। बहुत लोग तो सर मार्च एंड में ही खर्चे डालते हैं, तो ये सब चीजों का के लिए भी हमने रिप्रेजेंटेशन, ये इश्यूज आ रहे हैं लोगों को, कि प्रैक्टिकल इश्यूज है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के लिए। हमने बोला कि एटलीस्ट 30 जून तक इन्होंने खर्चा किया हो मार्च का,
वो भी आप अलाउ करो, तो देखते हैं उनका सर क्या आता है। बस देखिए ना, वेरी प्रैक्टिकल इशू दैट वी आर फेसिंग। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं दूसरा एक 44 ADA का आपको मैंने सुबह स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था, व्हेन दैट मेंशन दैट कि 44 ADA अगर हम फॉलो करते हैं एज अ CA, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है हम लोग और हमने 44 ADA फॉलो किया है, हम लिखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट मेंटेन्ड, उसमें इशू एक ही आता है, हमारा जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आवर CA एक्ट है वहां पे लिखा है भी एवरी CA फर्म और अ CA प्रोप्राइटरशिप फर्म हैज टू कंपल्सरी मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर हम वहां लिखते हैं then it might come as a issue कि भी हम लोगों ने CA में हम बोल रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, that is somewhere it's a disconnect, but एक वो मुझे आपको I just wanted to throw a light on that कि schedule 2 जो है it does not allow us to not to maintain books of accounts। yes. वो मेरा ये पूछना इस केस में खाली ये पूछना है कि फॉर द पर्पस ऑफ जो इनकम टैक्स रिटर्न है, मेरे पास मैं पूरी मेंटेन करता हूँ, मेरे पास फिगर सभी है अवेलेबल। अब चूंकि मेरे को ऑडिट में नहीं जाना, मैं 18 लाख का टर्नओवर है मेरा टोटल, और नहीं जाना, मैं 9 लाख डिक्लेयर करता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? मतलब मैं फॉर द पर्पस ऑफ वहां जरूर लिख रहा हूँ कि नॉन बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन पर्सनली तो मेरे पास अवेलेबल है ना सर। सर वही आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इंस्टीट्यूट को, मैं वही तो बोल रहा हूँ। इंस्टीट्यूट आपको पूछ सकता है, आप तो लिख तो वहां पे ऐसा थोड़ी ऑप्शन है कि मैं अलग से करता हूँ नहीं करता हूँ, वहां यही है कि वेदर आई मेंटेन्ड और नॉट, एंड इफ आई से नो that practically means I'm not maintaining any books of accounts, I'm just declaring 50% of my receipt। ओके, सही बात है। That is an issue। अच्छा, इसके चांस क्या सर के इंस्टीट्यूट आपका रिटर्न चेक करेगी? नहीं सर, वो मैं आपको सिर्फ I'm just throwing a light कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, सर वो अलग चीज है। इंस्टीट्यूट तो अभी अब मुझे नहीं पता, I cannot comment on that, but it's just the point I wanted to focus ऐसा। सही। ये जो आप लिख रहे हैं TDS of quarter 1 and 2 of 2021 extended till 31st of March, इसका कोई नोटिफिकेशन आया है? I doubt कि कोई नोटिफिकेशन आया है। I think खामोशी जी, I think somebody has raised this question, if you are there online। सर ऐसा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया सर अभी मेरे तक। को भी ध्यान में नहीं है सर ऐसा कुछ अभी, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट सर। 31 मार्च तक करेंगे तो फिर आपके बाकी क्वार्टर ये कब करेंगे, और फिर नेक्स्ट ईयर पूरा ईयर डिस्टर्ब हो जाएगा। डाउट के सर ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, मेरे को सर वो उसमें क्या है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 9% जो लिया है ना सर, वो 9% इंटरेस्ट तो लगेगा उनको, खाली रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है, मतलब आपकी टैक्सेशन पेमेंट करने की डेट एक्सटेंड नहीं हुई सर। सर क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 करंट ईयर की बात कर रहे हैं ना? करंट मेरे ख्याल से सर मेरे पास कोई नोटिफिकेशन मेरे ध्यान में नहीं है सर। आपके पास हो तो मुझे बताइएगा कौन सा नंबर है, बिकॉज़ एज ऑफ टुडे आई डोंट थिंक देयर इज एनी नोटिफिकेशन जो ये बोलता है। नोटिफिकेशन नहीं है सर, ये एक्चुअली जनरल डिस्कशन में आ रहा है, मैंने करीब 2 जगह पढ़ लिया इसको, और आज आप देखेंगे शायद टैक्समैन की एक बुक है शायद जून मंथ की, उसमें भी उन्होंने स्पेसिफिकली डेट मेंशन की है। मैं अगर होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा सर। मेरे को भेजिए पक्का से, क्योंकि सर इसमें क्या होता है टैक्समैन और एक जनरल डिस्कशन सर क्या होता है, व्हाट्सएप मैसेजेस तो बहुत सारे चलते हैं, बट आई थिंक वी नेवर बिलीव ऑन दैट। अब तो अगर हम उसमें देखेंगे इनफैक्ट जो हमारा टैक्समैन का पोर्ट जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे देखते हैं, अगर वहां पे नहीं है देन आई थिंक आई डाउट सर। पर सर आप बोल रहे हैं तो वी कैन स्टिल डबल चेक। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, पर होगा तो विल स्टिल डबल चेक, देख लेंगे। अभी और कोई चाहता है क्वेरी लेना सर? जितना हैंड रेज कर दीजिए इफ क्वेरी है तो। सर खामोशी जी आप अनम्यूट हैं सर, आप यदि बात करना चाहते हैं तो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी बताइए। हेलो। यस सर जी, आवाज आ रही? जी सर। मेरे को एक क्वेश्चन है, प्रोफेशनल्स के लिए। अपन जो बैंक ऑडिट करते हैं, केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, और अपना ऑडिट अगले अप्रैल मई जून में करते हैं, और फीस का जो प्रोविजन वो करते हैं तो टीडीएस पहले कर लेते हैं, है ना? तो उस केस में अपना जो रिटर्न जाता है उसमें प्रेजेंटेशन का क्या तरीका है? सबके अलग अलग ओपिनियन है, क्योंकि वो 26 एस में तो पिछले साल में दिखता है वो, और फीस अपने अगले साल मिलती है। तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू शो इट?
सर आफ्टर जीएसटी आप मर्केंटाइल में के कैश में? नहीं, हम जीएसटी के आफ्टर जीएसटी है और कैश में ही हम तो, और हमारे जीएसटी में जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है हमारे ऊपर। ठीक है, तीन क्वेश्चन है। मैं आपको सिंपल बताऊं, अगर आप कैश में करते हैं, आपका मर्केंटाइल बेसिस के हिसाब से मार्च में टीडीएस कट गया है, ठीक है, आप इनकम तो नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे क्योंकि आपको पैसा जून जुलाई में आया होगा जी। ठीक है। अब सर एक इनकम टैक्स में एक ऑप्शन है, आप जब लास्ट ईयर रिटर्न फाइल करेंगे ना, देखो अगर हम 19 रिटर्न फाइल करेंगे, उसके 26 ईयर्स में आपको इनकम दिख रही होगी आपकी और आपको टीडीएस भी दिख रहा होगा, तो वहां पे एक ऑप्शन है उसको आप नहीं लेने का, अब उसको आप डीसिलेक्ट कर दो, उसको आप सिलेक्ट मत करो क्लेम करने के लिए। जब अगले साल रिटर्न फाइल करोगे ना 19-20-21 का, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का, उसमें आप वो इनकम दिखाओ, उसमें वो टीडीएस भी पुराने साल का मैनुअली फिल करो, उसको लिखो ब्रॉड फॉरवर्ड ऑफ अर्लियर ईयर जो मैंने क्लेम नहीं किया है, और आपको 20-21 में वो मिल जाएगा। अच्छा, एक तो ये बताया, एक सेकंड एक और चीज है, सेक्शन 198 एक प्रोविजन है जिसमें अगर आपका जो टीडीएस अमाउंट है इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ डीम्ड इनकम। तो इन दैट केस अगर हम वो टीडीएस जैसे मान लो 1 लाख में 10,000 कटा है तो 10,000 में उसको इनकम में शो करता हूँ, 10,000 टीडीएस क्लेम कर लूँ तो क्या वो चलेगा? सर बहुत लोग करते हैं, मैं यही बोल रहा हूँ, आप अगर लास्ट ईयर में भी उसको सपोज इनकम ट्रीट कर दो ना, वो पर आपका, लेकिन इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 ओनली, दैट इज माय पॉइंट। सर दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज उसमें क्या होगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर क्या दिखाओगे, नेक्स्ट ईयर बैलेंस इनकम दिखाओगे कि दिखाओगे ही नहीं? नहीं, नेक्स्ट ईयर तो इनकम, हमारी इनकम तो कैश सिस्टम है, अकाउंट अगले साल बताएंगे, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस क्लेमिंग टू द एक्सटेंट, क्यों 198(6) आप देखिए सब सेक्शन, उसमें टीडीएस अमाउंट का टू द एक्सटेंट ऑफ टीडीएस अमाउंट इट इज डीम्ड इनकम। बट सर हैव यू रिसीव्ड दैट इनकम कैश सिस्टम में? 199 को उससे में ऐड नहीं करना, इनकम शो करके मैं सिस्टम है अकाउंटिंग से, लेकिन कोई टीडीएस का पॉइंट है, टीडीएस को अगर मैं क्लेम किया, मेरे 26 आया है तो मैं उसको हाइड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उतना अमाउंट में इनकम में शो कर रहा हूँ सिस्टम अकाउंट, क्योंकि डीम टू बी, भाई मेरा टीडीएस अमाउंट का डीम्ड इनकम तो हो ही गई, मेरी इनकम का ही पार्ट है, वो मेरे इनकम का ही पार्ट है, टैक्सेबिलिटी का पॉइंट तो अलग चीज हो गई, लेकिन इनकम का तो पार्ट है ना वो। आप सेक्शन 198 एक बार रेफर करके फिर वापस बताइए। सर आपका व्यू पॉइंट ठीक है, बट आई थिंक आई रिस्पेक्ट दैट, बट इवन आई थिंक मेजॉरिटी प्रोफेशनल जो मैंने बताया ना यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर उसको पूरा क्लेम कर लेते हैं, पूरे नेक्स्ट ईयर पूरी इनकम भी दिखाते हैं। लेकिन वो प्रोसेस सही, वो भी प्रोसेस हो रहा है जो आप बता रहे हो, वो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस होके आया रिटर्न आपके, मतलब अपन इसको 26 ईयर्स में होते हुए भी अगले साल कर लेते हैं तो क्या प्रोसेस हो गया, प्रोसेस हो गया रिटर्न, वो ये मैं पूछ रहा हूँ। सर प्रोसेस होता है, मतलब वो हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब वो हो रहा है। अच्छा ठीक, वो हो रहा है, बिकॉज सर ये हमेशा, ये अभी का नहीं था, पहले का सर्विस टैक्स के टाइम का इशू आ रहा है, ये हर टाइम का इशू कैश और मर्केंटाइल में होता ही है। बहुत सारे सीएस अभी स्विच कर गए मर्केंटाइल पे, पर जिनका कैश है सर वो होता ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, ओके सर, थैंक यू। Any other thing that we can discuss? अरे कनेक्ट क्या, डिस्चार्ज हो गया पूरा, मैं बोल ही रहा था ना कि मेरे को 1%। मजा आ गया जूम मीटिंग में आज। हेलो सॉरी सर। हेलो जी सर, और कोई क्वेरी है? चलिए सर, टाइम भी हो गया है आज का, तो मैं आज सभी उपस्थित मेंबर्स जो रतलाम ब्रांच से हैं और बाहर के भी आज मेंबर्स को हमने इनवाइट किया था, और आज की स्पेशली फैकल्टी को जिसने आज इतना फास्ट फॉरवर्ड सारे बहुत कम समय में अपने सारे पॉइंट्स और सारे आईटीआर कवर कर लिए हैं, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। आगे भी आपका हमें सानिध्य प्राप्त होता रहे रतलाम जिस छोटी ब्रांच को, और आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए सर। इस कोविड वाले अभी जो ये सीजन चल रहा है, ये और विकट स्थिति आने वाली है, हमारा प्रोफेशन भी आगे बहुत अच्छे से बढ़ता रहे, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की मीटिंग बहुत सफल रही, इसलिए बहुत बहुत सभी का उपस्थित होना मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देता हूँ मैं रतलाम ब्रांच की ओर से। थैंक यू ऑल। थैंक यू।